جی جی آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہی میری اسکرین پہ؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی، شیئر کی ہے آپ نے؟ ایک سیکنڈ پھر ٹرائی کرتا ہوں. شیئر کانٹینٹ، اسکرین براڈ کاسٹ، یہ ہمارے ہمیں سب آپ دیکھیں جی اسکرین ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی. شیئر کا نظر آ رہا ہے. ہاں جی آپ کی ڈیسک اسکرین ٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی اکنامک ڈیسک ٹاپ کرائسس آ اینڈ گئی. ماڈرن مانیٹری تھی. جی آ گیا. آ گئی؟ اوکے گریٹ. جی 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 مجھے نظر آ رہا ہے. اوکے ونڈرفل ونڈرفل. جی ہم ارتقا کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ارتقا کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر ریاض شیخ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں. ڈاکٹر ریاض شیخ. اوما بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں تمام ساتھیوں کو جو کہ ارتقا کے دفتر میں ہیں اور جو ساتھی ہمارے آن لائن ہیں سب کو اس پروگرام میں شریک ہونے پر دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ارتقا کی جو ٹریڈیشن ہے، ارتقا کی جو روایت ہے اس کے تحت اس کی کنٹینویشن میں ہو رہا ہے. اور ہم جن موضوعات پہ یہ لیکچرز اور سیمینارز کرتے ہیں وہ ہمارے سارے دوست اور ساتھی جو ہے اس سے واقف ہیں. ارتقا کی ایک طویل تاریخ ہے. آج کے لیکچر کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر تیمور رحمان ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان ایک جو ہے وہ نام ہے جو کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سارے پروفیسر ساتھی بہت قریب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان ہم جو ہے لمس یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل تھیوری اور ریلیشنز کے حوالے سے، اور ان کی سب سے جو معنیات کتاب ہے کلاس اسٹرکچر آف پاکستان، میرے خیال میں بہت وسیع کام ہے جس کو سمجھنا اور اس کو سارا وہ جو نظریاتی مباحث کے اندر دیکھنا بہت بڑا کام ہے. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر تیمور جو ہے وہ لال بینڈ کے ساتھ بھی وابستہ ہے، بلکہ اس کے روح رواں ہے، پوری فیملی کے ساتھ اس میں شریک ہو. ہیلو جی ڈاکٹر ریاض آپ ہیں؟ ڈاکٹر ریاض میرے خیال سے ان کا شاید آن لائن اس کا مسئلہ ہو رہا نیٹ ہوگا. ورک پرابلم. تو میں ڈاکٹر تیمور رحمان سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بہت اہم موضوع ہے اکنامک کرائسس جس سے ہم لوگ آج کل گزر بھی رہے ہیں، اور مانیٹری کی بھی بہت ساری IMF اور یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو آپ اس کے اوپر ہمارے جو قارئین کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے وہ سننا چاہیں گے کس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ریاض آپ نے بڑا پیارا تعارف کیا، بڑا تفصیلی تعارف تھا، مگر لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کو زیادہ پسند نہیں آیا. اب ہوما آواز آ رہی میری؟ آ رہی ہے جی. ڈاکٹر ریاض ڈاکٹر تیمور رحمان جو ہیں وہ بات شروع کر رہے ہیں اپنی. ڈاکٹر ریاض آپ اپنا مائک اب میوٹ کر لیں. جی شکریہ. سب سے پہلے تو ارتقا انسٹیٹیوٹ کی بہت مہربانی، آپ نے آج کا لیکچر کا اہتمام کیا. اور ڈاکٹر ریاض آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا. آئی ایم ویری گریٹفل. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ شاید انٹرنیٹ کو بہت زیادہ آپ کا انٹروڈکشن اور تعریف پسند نہیں آئی، اس لیے آپ کا کنیکشن بند کر دیا گیا ہے. مگر بہرحال
سب سے پہلے تو دوستوں آپ سب کے سامنے معذرت، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا اور ہم نے اناؤنس بھی یہ کیا تھا کہ یہ لیکچر ہم کراچی میں ان پرسن رکھیں گے، مگر میں کراچی نہیں آ سکا. سننے میں یہ آیا کہ کراچی ویسے ہی ڈوب رہا ہے اس وقت، اور میری بھی کچھ اپنی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے جن سے میں باہر نہیں نکل پایا، بلکہ مجھے اسلام آباد آنا پڑا. اور اس وقت میں اسلام آباد سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اگرچہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں لاہور کا رہائشی. سو مائی اپالوجیز فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ میں ان پرسن یہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پایا. اور دوسرا یہ بھی کہ آج صبح سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی کچھ ڈسٹربنس وغیرہ ہے، تو جس کی وجہ سے ریاض صاحب کا اتنا شاندار انٹروڈکشن بھی ادھورا رہ گیا. اور اگر لیکچر کے دوران بھی کوئی بات اگر کٹ ہو جائے یا کوئی ڈسٹربنس ہو تو آئی اپالوجائز ان ایڈوانس فار دیٹ. اور امید ہے کہ میں نے وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو امید ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی. تو جناب آج کا موضوع ایسا ہے کہ جس کا ایک پہلو تو تمام لوگ پہلے ہی جانتے ہیں، وہ ہے پاکستان کے اندر معاشی بحران، اور دوسرا پہلو شاید لوگوں کے لیے کچھ نیا ہو، اور وہ ہے ماڈرن مانیٹری تھیوری. یہ اکنامکس کی تھیوری ہے، مگر میں اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ طریقے سے نہیں سمجھاؤں گا، بہت ہی سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میرا خیال ہے انجوائے کریں گے، اور اس کو شاید کچھ میں نئی بات بھی، نئی معلومات بھی آپ کو ملے. آئے سب سے پہلے پاکستان کے معاشی بحران کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. بہت مشکل معاملات نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اکنامکس بڑی مشکل چیز ہے، اتنے سارے نمبرز ہوتے ہیں، ٹیبلز ہوتے ہیں، گرافس ہوتے ہیں، پھر ان کی ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان میں سے ریگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے. مگر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سادہ سی بات یہ کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 25.6 بلین ہے، اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 53.8 بلین ہے. یعنی کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ کرنے کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے. ہم اتنا کچھ امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے مقابلے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 28.2 بلین ڈالرز پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہوا ہمیں. اور یہ ہم پورا اکثر کرتے ہیں کس طرح سے کہ ہمیں ریمیٹنسز ملتی ہیں، یعنی جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ پیسے اپنے بوڑھے والدین کو واپس بھیجتے ہیں، تو وہ ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً 29.4 بلین ڈالرز، یعنی جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان بیسیکلی ایک ریمیٹنس اکانومی بن گئی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ڈیٹا اس کو پروو کر رہا ہے کہ اب ہم بیسیکلی ایک ریمیٹنس اکانومی ہے. زیادہ تر پیسے جو ہم باہر سے کماتے ہیں وہ ہمیں وہ پیسے ہیں جو کہ باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ملک میں واپس بھیجتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے دوستوں کہ ہمارے جو سو کالڈ سرمایہ دار طبقہ ہے اور سو کالڈ صنعت کار طبقہ ہے، جس نے پاکستان کو جو ہمیشہ سے ہی بڑا ایکسپورٹ اورینٹڈ رہا. آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایوب خان نے 22 خاندانوں کو ہینڈ پیک کیا تھا، جو آج بھی ڈومینیٹ مور اور لیس کرتے ہیں بھٹو نیشنلائزیشن کے باوجود، تو وہ جو ہینڈ پکڈ کیپٹلسٹ تھے وہ بیسکلی ان میں سے زیادہ تر امپورٹرز تھے. ان کو میسو امپورٹ سبسڈیز اور انٹرنیشنل ٹریڈ مونوپولیز وغیرہ ایوب خان نے دی، مگر وہ بالکل پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں فیل ہو چکے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے جتنی آمدنی وہ جنریٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے ایکسپورٹس وغیرہ کے اعتبار سے، اس سے زیادہ آمدنی ہمارے مزدور جنریٹ کرتے ہیں جو باہر بھیج کے اپنا خرچہ کر کے پیٹ پورا کر کے کھا پی کے اور پھر جو پیسے واپس بھیجتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اندازہ کریں آپ. امپورٹس کو ایک نظر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منرلز، فیولز، آئلز، ڈسٹیلیشن پروڈکٹس are 27% of our imports. Massive level جو ہماری امپورٹس ہیں وہ فیولز اور آئلز اور منرل فیولز اور آئلز کی امپورٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیونکہ تیل بناتے نہیں ہیں، ہم گیس نہیں بناتے، ہم LNG نہیں بناتے، ہم پیٹرول نہیں بناتے، ہم ڈیزل نہیں بناتے، تو یہ چیزیں ہمیں منگانی پڑتی ہیں. یہ ہمارے امپورٹ کا سب سے بڑا بل ہے. اس کے بعد ہے الیکٹرانک اکوپمنٹ، یہ جو سارے سیل فونز اور کمپیوٹرز اور یہ وہ ساری چیزیں یہ ہم بیسکلی امپورٹ کرتے ہیں. پھر مشینری، نیوکلیئر ریئیکٹرز، بوائلرز وغیرہ 8% وہ ہے. آئرن اینڈ اسٹیل بھی ابھی تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں سوویت یونین نے اسٹیل مل بنا کے دی تھی اس کا ہم نے 1/3 حصہ تو کمپلیٹ کر لیا تھا، باقی 2/3 حصہ ہم نے کبھی کمپلیٹ ہی نہیں کیا. فارماسیوٹیکل پروڈکٹس 5.2، اینیمل ویجیٹیبل فیٹس، آئلز ایکسیٹرا پروڈکٹس جو ہیں وہ اندر تقریباً 5%. ویکلز بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ ساری تو امپورٹ ہی ہوتی ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے. پھر آئل سیڈ وغیرہ اور کاٹن کی کچھ پروڈکٹس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. مزید پلاسٹکس، آرگینک کیمیکلز. عرض یہ ہے کہ سب سے بڑا بل جو ہے وہ آئل، گیس وغیرہ کا ہے، اور اس کے بعد تقریباً تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو بیچتے کیا ہیں پھر؟ اگر یہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں تو باہر کیا بیچا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2003 سے 2015 تک کہ
2015 तक भी 58% ऑफ योर प्रोडक्ट्स, तकरीबन आप 60% कह लें, वो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है। आज भी वो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है। उसके बाद है वेजिटेबल्स, जो अब थोड़ा सा बढ़ गई हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 14.53, तकरीबन 15% है। और उसके बाद हाइड्स एंड स्किन्स हैं, यानी कि चमड़े के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स हैं, फिर मिसलेनियस एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि आज भी हमारी इकोनॉमी जो है उसका 3/4 हिस्सा, तकरीबन 75 to 80% हिस्सा जो एक्सपोर्ट चीजें हम कर रहे हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लो लेवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, थोड़े से गारमेंट्स वगैरह कर लिए, वेजिटेबल्स बेच ली, चमड़ा बेच लिया, और फूड के वेरियस प्रोडक्ट्स वगैरह मैंगोज शेंगोज बेच ली। इसके अलावा कुछ नो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इसमें शामिल ही नहीं है। कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें नहीं बेच रहे, कोई कंप्यूटर्स नहीं बना रहे, कोई फोन्स नहीं बना रहे, कोई चिप्स नहीं बना रहे, कोई टीवीज नहीं बना रहे, कोई ऐसी चीज बना ही नहीं रहे जिसको हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। सिर्फ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हर साल हमें डेट में हम फंस जाते हैं। हर साल हमें बोरो करना पड़ता है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा करने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सादा सी बात है। इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट में जो अखराजात हो रहे हैं वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसमें आप खसारे में जाते हैं, क्योंकि बाहर में जितने लोग रहते हैं वो रुपए पैसों में आपसे चीजें तो नहीं खरीदेंगे, वो तो आपसे डॉलर में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी, एक तो हम इतना कुछ बेचते ही नहीं है कि लोगों को पाकिस्तानी करेंसी की जरूरत हो इतने बड़े पैमाने पर, और दूसरा मामला ये है कि ना हम इतना कुछ खरीदते हैं ना हम इतना कुछ बेचते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में टोटली इररेलेवेंट है। तो क्योंकि वो इररेलेवेंट है, हमें डॉलर्स की जरूरत है। तो जब हम कोई चीज बेचते हैं हम डॉलर्स कमाते हैं, या बाहर से कोई चीज डॉलर कमाता है वो यहाँ पे पाकिस्तान बेचता है तो हमारे पास डॉलर्स आ जाते हैं। और जो चीजें हमें खरीदनी होती हैं, जो जिन लोगों से हम खरीदते हैं उनसे भी हमने डॉलर्स में खरीदने होते हैं। अब एक जमाना था जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक का कि हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था। हुकूमत कह देती थी अगर आपने बाहर जाना है तो आपको इतने डॉलर्स खरीदने की इजाजत है, अगर आपने एक्सपोर्ट करना है आपको इतने डॉलर्स की इजाजत है, इंपोर्ट करना है इतने डॉलर्स की इजाजत है, वगैरह वगैरह। यानी कि डॉलर्स की जो सप्लाई और डिमांड वगैरह और परचेस और ये सब चीजें थी, उसके लिए आपको बाकायदा एक फॉर्म भरना पड़ता था, और फिर गवर्नमेंट डिटरमिन करती थी, ब्यूरोक्रेसी डिटरमिन करती थी कि आया आपको डॉलर दिए जाएंगे या नहीं दिए। इसके बाद लेट 1980s अर्ली 90s के अंदर ये सब कुछ पूरी दुनिया के अंदर ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म हो गया, और आप जाके करेंसी चेंजर से जो है डॉलर ओपन मार्केट पे खरीद सकते हैं। जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं लोग, उनके लिए भी एक बिजनेस था कि हम सस्ते डॉलर हासिल करेंगे, महंगे उनको बेचेंगे, उसमें जो डिफरेंस होगा उससे हम अपना बिजनेस चलाएंगे। अब इसका मतलब ये कि करेंसी जो है उस पर स्पेकुलेट भी किया जा सकता था। आप डॉलर इस मकसद के लिए भी खरीद सकते थे कि आइंदा डॉलर की कीमत जब बढ़ेगी तो मेरे पास पैसे पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रही रुपए और डॉलर के दरमियान जो आप कह सकते हैं रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में अब नहीं है। पहले हुआ अब नहीं। और ये उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है जिसको हम नियो लिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने हमें ये कहा, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने हमें ये कहा कि जनाब प्राइवेटाइजेशन कर दें आप, अपनी स्टेट एसेट्स वगैरह बेच दें, क्योंकि गवर्नमेंट्स बड़ी इनएफिशिएंट होती है, मुनाफा बख्श नहीं होती। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि डी रेगुलेशन कर दें, और अब नंबर 3 उन्होंने ये कहा कि लिबरलाइजेशन करते हैं। डी रेगुलेशन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंक्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दें, वो कर्जे वगैरह देने में ज्यादा उनके पास पावर्स हो, और लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि टैरिफ बैरियर्स वगैरह गिरा दें, किसी किस्म की प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज वगैरह गिरा दें। ये 3 उसके एस्पेक्ट्स थे जो पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट हुए, और रिजल्ट उसका यही हुआ कि ओपन मार्केट इकोनॉमी, किसी किस्म की प्रोटेक्शनिज्म ना हो, ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो प्राइवेट कैपिटलिज्म करे और कम से कम काम हुकूमत करे। हुकूमत का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बाकी तमाम कामों से वो निकले। इवन अब आप देखें कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कह रही है कि हॉस्पिटल्स की भी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, और एजुकेशन तो पहले ही, काफी देर पहले ही जो है आपको पता है कि पब्लिक एजुकेशन पाकिस्तान में तो कोलैप्स हो चुकी है। ज्यादातर लोग हायर एजुकेशन के लिए जो है वो प्राइवेट इदारों को प्रेफर करते हैं, अगरचे प्राइवेट इदारे अभी भी हुकूमती इदारों की क्वांटिटी से कम्पीट नहीं कर सकते। सो एनीवे, अब ये मामला ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसी तरह से कंट्रोल कर सकती है हुकूमत कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को वो कंट्रोल करे किसी तरह से, जिस तरह वो कर रही है कि इंपोर्ट्स पर बैन लगाए या टैक्सेस लगाए या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे। मगर इन सब चीजों को करने के बावजूद
हुकूमत पाकिस्तान जो है वो डॉलर या रुपये की डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं। क्यों कामयाब नहीं? उसकी बहुत सादा सी वजह है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं समझना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ऐसी चीज बनाता ही नहीं जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो चंद चीजें हम बनाते हैं तो हम इतना एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। जब हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो हमारे पास डॉलर ही नहीं होते। जब हमारे पास डॉलर नहीं होते तो हम मजबूर होते हैं कर्जे लेने पर। जब हम मजबूर होते हैं कर्जे लेने पर तो आईएमएफ ये कहता है, आईएमएफ की बहुत सारे लोग बात मानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आईएमएफ की बात मानता है, तकरीबन तमाम जो मल्टीलैटरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आईएमएफ से सिग्नल लेते हैं। तो आईएमएफ ये कहता है उसके पास एक बहुत ही सिंपल किस्म का मैकेनिज्म है और उसमें भी कोई लंबी चौड़ी इकोनॉमिक सीखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज है। वो ये है कि वो कहते हैं जी बजट मैनेज करें, आप अपना गवर्नमेंट बजट मैनेज करें, यानी हुकूमत जो है उस खसारे में, डेट में नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, ट्रेड डेफिसिट जो है वो अपना मैनेज करें, टैक्सेस वगैरह बढ़ाएं और अखराजात वगैरह कम करें और टैरिफ वगैरह, बैरियर्स वगैरह कम करें। और अगर आपके पास ये चीजें हैं बाकी सारी जो खसारे में जा रही हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें। यानी कि आईएमएफ ने बेसिकली 2 बजट्स को बैलेंस करना है, उसके अलावा और उनके पास कोई तीसरी एडवाइस नहीं। एक उसने बैलेंस करना, आपको कहना कि आपने ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करें, और दूसरा उन्होंने कहना कि आपने गवर्नमेंट डेफिसिट को मैनेज करें। बस दैट्स इट। इतनी पीएचडीज करने के बाद उन्होंने जो एडवाइस दी होती है वो इतनी सिंपल होती है कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। मैं इस तरह आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर मर्द जो है वो पैसे कमाते हैं तो औरतें जो है वो हाउसवाइफ होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो, तो हर घर के अंदर बजट बनता है कि आपने खर्चात करने हैं, इतने पैसे बच्चों की स्कूल की फीस पे लगेंगे, इतने पैसे जो है वो हमें बचा लेने चाहिए माँ प्यो की हेल्थ के लिए, हमें दवाइयाँ खरीदने पे लग जाएंगे, इतने पैसे रेंट पे लगेंगे, इतने पैसे खाने पे लगेंगे। हर घर में बजट बनता है। अगर आप बजट से ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यही चीज वो कहते हैं गवर्नमेंट से कि आप मैनेज करें, इसके अलावा कुछ नहीं। जो हर घर में होता है वही मिफ्ता इस्माइल साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मगर इंटरेस्टिंग बात यह है लिहाजा कि जो टूल्स हैं इकोनॉमिस्ट के पास, इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद, वो बड़े लिमिटेड है। दिलचस्प बात ये कि बड़े लिमिटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनके पास टूल क्या है कि बजट्स को मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट के बजट को मैनेज करें कि अखराजात और आमदनी जो है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि ट्रेड को मैनेज करें, कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को किसी तरह कम करें। वो भी आपने देखा कि वो किस तरह करते हैं कि इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगा देते हैं, इंपोर्ट्स पे बैन्स लगा देते हैं, लग्जरी इंपोर्ट्स पे बैन्स लगा देते हैं, एक्सपोर्टर्स को रिबेट्स देते हैं, पैसे देते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, हर किस्म की सहूलत देते हैं कि यार एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। इट्स वेरी सिंपल। और तीसरा उनके पास एक तीसरा टूल होता है इंटरेस्ट रेट्स। वो कंट्रोल करते हैं काइबोर के साथ। काइबोर इज द कराची जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है, इसको तो 15% पे है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो किस रेट पे लोन देता है, इसको भी थोड़ी देर बाद टच करेंगे। मगर ये तीसरा उनके पास तरीका कार है कि वो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। और बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में तकरीबन, मासवाई चीन वगैरह, वियतनाम के कुछ और इकोनॉमीज और चीजें कर रही, मगर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज के पास यही 3 टूल्स हैं। इकोनॉमिक्स इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद इन्हीं 3 चीजों को कर रहे होते हैं। ट्रेड डेफिसिट मैनेज कर दें, बजट डेफिसिट मैनेज कर दें और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स पे भी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, समझाऊंगा, मगर दैट्स इट सारी इकोनॉमिक्स के बाद। अब मैं एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, मैं भी इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था पहले, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो ये सारी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे लिए दिलचस्प बात ये है कि इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, और उसकी मैथमेटिक्स खासी कॉम्प्लिकेटेड। दिलचस्प बात ये है कि उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर उसकी जो थियरी है वो बहुत सिंपल है। थियरी बहुत सिंपल है, मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसके अंदर। वो भी उसकी क्या वजह है मैं अभी नहीं आपको बताता, मगर जस्ट टेक इट फ्रॉम मी कि दैट इज द केस। तो सारी की सारी इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड एज अ एकेडमिक फील्ड, हैरत अंगेज बात यह है कि वो सारी की सारी जब अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आती है तो इन 3 चीजों के अलावा उनके पास कोई टूल्स ही नहीं। कितनी अजीबोगरीब बात है, इतनी सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद इतनी सिंपल चीजें जब आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी बंदा सोचता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ने के बाद इतनी सिंपल सी चीज करनी थी तो कोई भी कर सकता है, तो कोई हाउसवाइफ भी कर सकती है, ठीक है, जिसकी कोई इकोनॉमिक्स में ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन को बड़ा महदूद कर दिया गया। ये एक बड़ी लंबी तब्दीली हुई है, इसमें भी मैं तफसील में नहीं जाता कि किस तरह केन्जियन, पहले मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, केन्जियन इकोनॉमिक्स से चलते चलते मार्जिनलिस्ट स्कूल वगैरह, और फिर नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कमबैक, एंड
ایلن گرینسپین اور ملٹن فریڈمن وغیرہ اور پھر اکنامکس ڈپارٹمنٹس کیسے چینج ہوئی اور اس کے اندر سارا تھاٹس پروسیس کس طرح چینج ہوا اور کتنے سارے اکنامکس کے سکولز کو اکنامکس کی اکیڈیمیا سے باہر نکال کر تو اکنامکس کو ایک سکول کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہی اکنامکس ہوگی اور باقی سب چیزیں جو ہے ان کو ہم اگنور کر دیں گے. ان کو آج ہم ہیٹروڈاکس اکنامکس کہتے ہیں اور یہ لہٰذا آرتھوڈاکس اکنامکس ہے. اگرچہ اکانومسٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم آرتھوڈاکس ہیں وہ ہیٹروڈاکس ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اکانومسٹ ہیں, وہ تو ایویں بونکیاں مارتے. بٹ بہرحال اس سارے سلسلے میں جو ٹنل ویژننگ ہوئی ہے اکنامکس کی, اس میں نظر یہ آتا ہے کہ ہم ایک بہت اہم بات بھول گئے جو بیسک بات ہے. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتا ہوں, کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے, اتنی ایڈوانس میتھمیٹکس جس نے نہیں بھی پڑھی وہ بھی سمجھ سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ از اباؤٹ لرننگ ٹو میک تھنگس. معیشت تب ایڈوانس کرتی ہے, معیشت تب ترقی کرتی ہے جب آپ کی سوسائٹی نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے, یا وہی چیزیں جو پہلے وہ بنا رہی ہے ان کو نئے طرز سے, نئے طریقے سے بنانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے, جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. اب ٹیکنالوجی جب لفظ آتا ہے تو ہم کمپیوٹر وغیرہ کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, مگر فائر بھی ایک ٹیکنالوجی ہے, آگ بنانا بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ جو فلنٹ ٹولز انسان نے بنائے, پتھر کو پتھر رگڑ کے کہ یہ میں اس سے ایک چھری بنا لوں گا یا ایک ہیمر بناؤں گا, یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جب آپ نے آگ بنانی سیکھی انسان نے تو ایک بہت بڑی جمپ ماری انسان نے. جب ایگریکلچر سیکھا ایک بہت بڑی جمپ ماری آگے انسان نے. جب ٹولز بنانے سیکھے بہت بڑی جمپ ماری. تو ایکچولی if you really think about it, اور میں اس اکانومسٹ کا نام نہیں لیتا جو اس بات کو بڑا کلیریفائی کرتا ہے, مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی بڑی سی داڑھی تھی. تو اس نے یہ بات سمجھائی کہ مین, انسان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس اور بجٹس اور ٹریڈ اور یہ وہ نہیں, وہ بلکہ ہے دی ابلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو میک نیو ٹولز. مین از اے ٹول میکنگ اینیمل. برونوفسکی نے یہ لفظ استعمال کیے تھے, بڑا زبردست اس کی سیریز تھی اسینٹ آف مین, کتاب بھی تھی. تو مین از اے ٹول میکنگ اینیمل. اوزار بنانا, اوزار جو ہے مشین بھی ایک اوزار ہے, سے ہم اب وہی کام جو ہم ہاتھ سے کر رہے تھے یا وہ کام جو ہم ہاتھ سے کر بھی نہیں سکتے وہ ہم اوزاروں سے کر سکتے ہیں اور ہزاروں گنا بہتر کر سکتے ہیں اور جلدی کر سکتے ہیں, زیادہ ایفیشنٹلی کر سکتے ہیں, اپنا لیبر بچا سکتے ہیں. تو جیسے جیسے لیبر جیسے جیسے اوزار ڈیولپ ہوتے ویسے ویسے انسان ترقی کرتا ہے. ون وڈ تھنک کہ اکانومکس, جب میں نے اکنامکس پڑھنی شروع کی تو میرا یہ خیال تھا کہ میں یہ سیکھوں گا کہ نئی چیزیں کیسے بنتی ہیں, بنائی جاتی ہیں وغیرہ. مگر میں بڑا شوق تھا کہ اکنامکس نے کبھی مجھے یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں کہ کیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی اور یہ اور وہ میں ہم گھومتے رہے اور اس کی میتھ کرتے رہے, پرفیکٹ کمپٹیشن کیا ہے یہ سب ہم ایکسپلور کرتے رہے, کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ سوسائٹیز ترقی کیسے کرتی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کی کیا وجہ ہے کسی اور میں بتاؤں گا, مگر بہرحال تو یہ اکنامکس کی ٹنل ویژننگ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اصل میں اکنامکس از اباؤٹ, شوڈ بی اباؤٹ لرننگ ٹو میک تھنگس. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستانی ویسے تو بڑے چلاک ہیں, ہم تو جگاڑ لگانے کے ماسٹر ہیں, ہمیں کوئی پرابلم مل جائے ہم ایسی جگاڑ لگاتے ہیں کہ امریکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, مگر امریکن ہم سے بڑے آگے ہیں. آئی کیو میں بھی ہم بڑی تیز ہے, جگاڑ والی آئی کیو میں تو ہم بہت تیز ہے. مطلب ہے ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم اس کا انجر پنجر توڑ کے کسی طرح کوئی چیز چنگم شیکم لگا کے کوئی ٹیپ شیپ لگا کے اس کو چلا بھی لیتے ہیں. تو ہم ڈم لوگ نہیں ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, مگر اکنامکلی ہم ڈیولپ نہیں کر رہے. امریکہ کی اتنی تیز ترین ترقی ہے کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. چین میں بھی بڑی ترقی ہے, جاپان میں بڑی ترقی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکن وہی کام جو کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں وہ ٹولز یوز کرتے ہیں. گھاس کاٹنی ہے, ان کے پاس ہزاروں قسم کی مشینز ہیں جن سے وہ گھاس کاٹتے ہیں. کمیونیکیشن, سیٹلائٹ, ٹیلی ویژن, انفارمیشن, ہر چیز کے لیے ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے نئے قسم کے ٹولز ہیں. ہارویسٹر, کمبائنز, کبھی کسی قسم کی مشینز, کبھی کسی قسم کی, ہر چیز مشین کرتی ہے. اور اب تو اگر کبھی آپ نے Amazon.com کی فیکٹری دیکھی ہو تو جو ان کا ویئر ہاؤس ہے ان میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر ڈیلیوری باکس میں ڈالنے کا کام بھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا روبوٹ جا کے کرتا ہے, جو زمین پہ چلتا ہے, ڈبہ اٹھاتا ہے اور وہاں لے کے جاتا ہے جہاں پہ اس نے اس کو ڈپازٹ کرتا ہے. کتنی انکریڈیبل بات ہے. تو وہ اب سے آگے اگر ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ نئے اور نئے اور نئے اور نئے قسم کے اوزار بناتے ہیں اور ہم نہیں بناتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جگاڑ لگاتے رہتے ہیں, نئی چیزیں نہیں ڈیولپ کرتے, انوینٹ نہیں کرتے, کریٹ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں پھر, کدھر جاتی ہے ساری
क्रिएटिविटी. Why can't we learn? हम क्यों नहीं ये चीजें सीख सकते? अगर हम भी उतने इंटेलिजेंट हैं, जब हमारे लोग बाहर चले जाते हैं तो वो सीख लेते हैं, मगर यहाँ पे नहीं सीख सकते. क्या चक्कर? तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी आयरनी है पाकिस्तान. वो ये है कि एक तरफ वास्ट पूल्स ऑफ मैन पावर और लेबर पड़े पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा है कि जिसकी याद कोई नहीं. लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं कि भाई हमें वीजा दे दें, हम बाहर जाके काम करेंगे, हमें नौकरी दे दें. अभी बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया कि एक हमारे कॉमरेड ने अपने बेटे को भेजा कि वो टर्की जाए, टर्की से यूरोप जाए वगैरह. इलीगली वो जा रहा था, टर्किश गार्ड्स ने, बॉर्डर गार्ड्स ने उसको वहां कत्ल कर. और डेस्परेट है लोग कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें, वो काम करें, क्योंकि यहाँ तो काम ही कोई नहीं, खासतौर पर महंगाई के साथ. दूसरी तरफ जो लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क इज अ वेस्ट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. ठीक है, ज्यादातर काम जो हमारे नौजवान करते हैं, जब वो दफ्तरों में जाते हैं, तो उसमें वो कोई इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट नहीं हो रहे, चैलेंज नहीं हो रहे, कोई बड़ी कोई तीर नहीं मार रहे, कुछ नहीं कर रहे. चाय दे रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, कहीं पे कोई सर्विस सेक्टर के अंदर, ज्यादातर तो इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं. मशीनें कहीं पे इन्वेंट नहीं कर रहे हैं. जो बाहर से मशीनें आ जाती हैं उनको चला लेते हैं, वो भी थर्ड रेट मशीनें होती हैं. बाहर की मशीनें तो उससे बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं, बस उनको चलाना होता है. सारी टेक्नोलॉजी तो बाहर से आती है, गाड़ी भी बाहर से आती है, उसको असेंबल कर लेते हैं थोड़ा बहुत. कंप्यूटर भी बाहर से आता है, फोन भी बाहर से आता है, जितनी चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी बाहर से आती है. हम खुद नहीं पैदा कर रहे. छोटी छोटी वर्कशॉपों में कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, वो सारा सिर्फ रिपेयरिंग का काम है, रियल क्रिएशन का काम है ही कहीं. इनक्रेडिबल बात है. हालांकि हम बड़े क्रिएटिव लोग हैं, मगर इट डजंट एग्जिस्ट, इक्का दुक्का एक्सेप्शंस के अलावा. तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वास्ट थिंग्स नीड टू बी डन. इतना कुछ करने को है कि अगर आप सड़क से बाहर निकले, आजकल कराची में पता नहीं आप बाहर निकल सकेंगे या नहीं वो भी बड़ा मसला है पानी की वजह से. तो आपको चीजें नजर आएंगी कि कितना काम करने की जरूरत है. मिसाल तौर पे जी, वो नाले ब्लॉक हुए हैं, चलो जी चल के नाले साफ करें. क्या आपके पास लेबर कम है? कि वो पाकिस्तान के अंदर लेबर कम है जो नौकरी भी चाहती है, जो नाले साफ करने के लिए तैयार हो? उफ, मिलियंस ऑफ लोग बैठे हुए कहेंगे कि हमें पैसे दें, हम नाले साफ कर दें. कोई है ही नहीं पैसे जी कि आप उनको देंगे वो नाले साफ कर दें ताकि वाटर फ्लो हो जाए और मामला साफ हो जाए, पानी का मसला हल हो जाए, बिजली का मसला हल हो जाए. इतने सारे मसाइल, जो गार्बेज हमारी स्ट्रीट्स पे पड़ा हुआ है वो हल हो जाए. कंस्ट्रक्शन, लोग घर चाहते हैं, घर नहीं बन रहे. लोग मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, कहते हैं हमें नौकरी दें, हम काम करेंगे और हम घर बनाएंगे, हमें खुद भी घर अपना बना लेंगे, पैसे कमाएंगे. तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ हार्ड इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन मुश्किल काम नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस काम नहीं है. आप बड़े खूबसूरत शहर बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ, मौजूदा नो हाउ के साथ. आप पूरी कंट्री को रिवैम्प कर सकते हैं. आपके पास लेबर भी है, आपके पास नो हाउ भी है, मगर somehow or the other वो लेबर इस्तेमाल ही नहीं होती उन कामों के लिए, जिन कामों के लिए जो काम करने वाले हैं. आज के लेक्चर के बाद आप इस तरह करें कि वैसे जब आप निकलें कराची में अपनी किश्ती में निकलेंगे, तो साथ एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि क्या काम हो सकते हैं कराची को बेहतर करने के लिए या जिंदगी बेहतर करने के लिए. आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, लिस्ट इतनी लंबी जिसकी हद कोई नहीं. तो और ये भी साथ साथ सोचें कि क्या लोग हैं ऐसे जो वो काम कर सकते हैं, जो डेस्परेट हैं कि वो काम हो. आप कहेंगे कि हाँ लोग भी हैं. तो एक तरफ ह्यूज लेवल ऑफ काम करने की जरूरत है, काम करने वाले लोग मौजूद हैं, होता ही नहीं. क्यों नहीं होता? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं, आपको पॉलिटिशियंस भी कहेंगे, इकोनॉमिस्ट भी कहेंगे, सर पैसे नहीं है, कैसे कर सकते हैं? पैसे ही कोई नहीं है, किधर से आएंगे पैसे? तो पैसे क्यों नहीं है? आप देखेंगे पाकिस्तान एक किस्म के साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट में फंसा. जो पैसे हैं वो किधर जाते हैं? वो कैपिटल फ्लाइट कर जाते हैं, वो पाकिस्तान से निकल जाते हैं. जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि ठीक है, कुछ पैसा मैं अभी बैंक में रख लूंगा, कुछ पैसा मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक में रख लूंगा. अक्सर तो पैसा उन्होंने ऐसे बैंकों में रखा होता है जिनका अभी नाम भी नहीं आपको सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना होगा. तो ये भी बड़ी चिलाकी है कि वो अननोन बैंक्स में करोड़ों रुपया पड़े होते हैं. जो किसी छोटे से पिंड में बैंक होता है, वहां पे करोड़ों रुपया पड़े होते हैं, क्योंकि वो अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी होता है. तो बहरहाल जो थोड़ा बहुत वो तो इस्तेमाल के लिए, यहाँ पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए जो उन्होंने घर वगैरह बनाने, उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं. बहुत सारा पाकिस्तान का पैसा जो है वो तो बाहर चला गया है. कोई एमिरेट्स बैंक में पड़ा हुआ है, कोई क्या नाम है उसका, बार्कलेज बैंक में पड़ा हुआ है, कोई बैंक ऑफ अमेरिका में पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, ग्रिंडलेज वगैरह, ये वो जितने बड़े बड़े दुनिया के बैंक्स हैं, पाकिस्तानी रूलिंग क्लास अपना पैसा इकट्ठा करती है, और एक उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज अकाउंट से, मगर एक उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर बाहर भेज देती है.
यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती, और जब पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करते हैं तो किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? रियल एस्टेट। जी हाँ, उसके अलावा नई फैक्ट्रियों के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर नई फैक्ट्री लगती भी है तो वो इस किस्म की होती है जिस किस्म की कोई टेक्सटाइल छोटी मोटी नई फैक्ट्री, गारमेंट्स, ये बड़ी नई फैक्ट्री तो मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में कभी किसी ने सुनी नहीं। एट द सेम टाइम कि जब कैपिटल बाहर निकल रहा है, पैसा ही कोई नहीं है, तो वो लोग जो कि अच्छा काम करते हैं, सलाहियत वाले लोग हैं, वो भी ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, वो भी यहाँ से जा रहे हैं, और मतलब है लाखों की तादाद में जा रहे हैं। अगर मैं गिनूं कि कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनमें से कितने आज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और कितने बाहर काम कर रहे हैं, तो माइंड बॉगलिंग बात है कि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच। वो होती है मुझे क्लास में कहते हैं सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, मगर हमारा इरादा यही कि हमने इधर से निकलना है, बाहर जाना है, बस हमने यहाँ नहीं रहना। क्यों बाहर जा रहे हैं? कोई इनमें एथिकल फ्लॉ नहीं है, सादा सी बात है कि एक ऐसी इकोनॉमी में जहां कैपिटल जाएगा वहीं लेबर जाएगा, कैपिटल भी आपका बाहर जा रहा है, लेबर भी आपका बाहर जा रहा है, तो लेबर ऑलवेज चेसेस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो है वो लेबर को ऐसे सक्शन पंप की तरह खींचता है। तो सारा कैपिटल जो है वो तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर है, और जो आपकी स्किल्ड लेबर पावर है वो भी सारी फर्स्ट वर्ल्ड में जा रही है या मिडिल ईस्ट में जा रही है, जहाँ काम है वहां पे जा रही है, यहाँ तो काम ही नहीं है, तो यहाँ से सारी की सारी जा रही है। तो हम एक साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट में फंसे हुए हैं। हुकूमत क्या करे? हुकूमत कहती है, और सही कहती है, माई बाप हम क्या करें, 80% हमारा बजट तो डेट सर्विसिंग में लग जाता है और साथ मिलिट्री की एक्सपेंडिचर्स में लग जाता है। 20-25% मिलिट्री की एक्सपेंडिचर्स में, 56% जो है वो इसमें डेट सर्विसिंग में लग जाता है। मिलिट्री आपको पता है ना अपना बजट थोड़ा कम बताती है, क्योंकि कई सारी चीजें जो मिलिट्री पे अखराजात होते हैं वो सिविलियन में डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे पेंशन वगैरह ये वो। मगर बहरहाल छोड़े इस बात को, 80% बजट तो हुकूमत का है ही कोई नहीं, इसके पास है ही कोई नहीं, और वैसे ही मतलब उसके पास उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, बल्कि 80% मैं तो वैसे आपको 80% बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो उन्होंने सैलरीज वगैरह पे करनी है वो उस पर भी उनका कोई खास कंट्रोल नहीं है। तो ले दे के डेवलपमेंट बजट तो है ही कुछ नहीं हुकूमत के पास। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे ही कोई नहीं, हम कैसे डेवलपमेंट करें, हमारे पास पैसे ही कोई नहीं। और जब मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब अगर हुकूमत ने कोई डेवलपमेंट करनी है तो आप टैक्स अदा करें, टैक्स नहीं अदा करेंगे तो हम क्या कहना, अखराजात कैसे करेंगे, हम सड़कें कैसे बनाएंगे, अस्पताल कैसे चलाएं, एजुकेशन को कैसे ठीक करें। और आप लोग सोचते हैं बात तो बड़ी ठीक है भाई, हम तो टैक्स देते कोई नहीं है। चले आप तो देते होंगे, मगर जो अमीर लोग हैं वो तो इतना टैक्स नहीं देते, और जनरली पाकिस्तान की पब्लिक इतना टैक्स नहीं देती। तो शायद यही वजह है कि हम टैक्स नहीं दे रहे, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो लिहाजा कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। मगर एक आपको बात बताना चाहता हूँ, और ये आज के लेक्चर की सबसे मजेदार किस्म की बात है। हुकूमत के पास एक ऐसा औजार है जो आपके पास नहीं, मेरे पास भी नहीं, और वो ये है कि वो तो किसी वक्त भी चाहें तो पैसे वो प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं पैसे, दे कैन प्रिंट द मनी, इट डजंट कॉस्ट देम एनीथिंग। तो व्हाई डोंट दे जस्ट प्रिंट द मनी? अजीब सी बात लग रही है ना आपको, बड़ी खौफनाक सी और अनसेटलिंग सी बात लग रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से ये पूछते हैं कि मिफ्ता साहब अगर अस्पताल लगाना है तो, और आपके पास कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है, तो छाप ले पैसे, पैसे छाप के अस्पताल लगा ले। अगर आपने स्कूल लगाना है तो पैसे छाप के स्कूल लगा ले। अगर आपने कराची की ये जो नालियां ब्लॉक हुई हुई हैं इनको खोलना है तो पैसे छाप दें, मजदूर हायर करें, उनसे कहें जी सफाइयां करें, मजदूरों के पास पैसे आएंगे, मजदूर पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। इसमें कभी आपने सोचा कि ये क्यों नहीं ऑप्शन? हुकूमत कहती रहती है वी विश वी हैड मोर मनी, व्हाई डोंट दे जस्ट प्रिंट इट? ये क्या मसला है? जब हम ये बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ओए तौबा तौबा तौबा, कानों को हाथ लगा लो, ऐसी कभी आइंदा बात नहीं करनी, पैसे छाप लें। पैसे छापना बहुत बड़ा मसला है। पैसे अगर आप छापेंगे तो इन्फ्लेशन इतनी तेज होगी कि जिसकी हाथ भी साफ हो। और बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है, बहुत ज्यादा अगर आप पैसे छाप दें तो पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और शायद इकोनॉमी के अंदर इतने पैसे आ जाएंगे कि सरप्लस ऑफ मनी हो जाएगा, तो फिर शायद हम मनी की वैल्यू ही गिर जाए। सोचते हैं ना पैसे। तो एग्जांपल्स भी वो बड़ी सारी देते हैं, मिसाल तौर पे अभी श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका ने बहुत सारे पैसे छापे, वो उनकी इकोनॉमी की, उनके करेंसी की वैल्यू गिर गई। रशिया ने बोरिस येल्टसिन के पीरियड के अंदर बड़े सारे पैसे छापे, उनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। इसी तरह करेंसी क्राइसिस वहां पे जो ईस्ट एशिया वगैरह के अंदर हुआ, तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमें ये सबक कहते हैं, ना 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 ना, पैसे नहीं छापने, ये तो सबसे बुरी चीज होगी। अगर आप अपनी हुकूमत को तबाह करना चाहते हैं, मईशत को तबाह करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा पैसे छापते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा पैसे टाइट होनी चाहिए, टाइट,
बिल्कुल टाइट, कम से कम पैसे छापने आपने। और इसको मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नहीं, जितने स्टेट बैंक्स हैं दुनिया के अंदर उनको वो ये कहते हैं, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, कि हुकूमत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो ऑटोनमस होने चाहिए। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक नहीं तो पैसे छापने होते हैं। तो ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक का मसला क्यों एडवोकेट किया जाता है कि अगर हुकूमत होगी तो हुकूमत में टेम्पटेशन होगी, पॉलिटिशियंस के पास टेम्पटेशन होगी कि पैसे छाप दो, तो स्टेट बैंक ऑटोनमस कर दो, ताकि स्टेट बैंक जो है वो, हुकूमत अगर स्टेट बैंक को ये कहे कि आप पैसे छापो क्योंकि मैंने काम कराने हैं, तो स्टेट बैंक कहे नो वी कैन नॉट डू दैट, सॉरी। और अब तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में तो ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक जो है वो तो आईएमएफ कंट्रोल में है, और वहां पे अपॉइंटी भी हमेशा आईएमएफ का कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह बैठता है, और उसका एक ही काम है, इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद उसका एक ही काम होता है, और वो ये टू मेक श्योर कि मनी सप्लाई, पैसे छापने नहीं है, मनी सप्लाई नहीं आगे जानी चाहिए। एक जमाना था, आपको भी पता होगा, कि पैसे जो है वो तो होते ही नहीं थे। लोग जब तिजारत करते थे तो बार्टर में तिजारत करते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि चलो प्रेशियस मेटल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, सिल्वर और गोल्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया। यही वजह है कि सिल्वर और गोल्ड की जो वेट था वही करेंसी के नाम पड़े, जिस तरह मार्क और पाउंड वगैरह, इवन डॉलर वगैरह, ये उनके वेट के नाम है बेसिकली। सिल्वर पाउंड जो है वो एक पाउंड ऑफ सिल्वर होता है, उसकी वैल्यू थी। फिर उन्होंने उसको सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ जब पेपर करेंसी निकाली, जोड़ के रखा। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, खासतौर पे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, कि जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल मुमकिन नहीं था, उसने बिल्कुल खराब हो गया, और ग्रेट डिप्रेशन के बाद तो बिल्कुल ही इकोनॉमी इतनी आगे पीछे चली गई कि उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड से भी पैसे को हटा दिया। आज मनी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की चीज है, आपने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि ये क्या है। कुछ भी नहीं है सिवाय एक ऐसे नोट के, जिसको एक गवर्नर और स्टेट बैंक ने एक पेपर पे बस उसने लिख दिया है, बैंक के दौलत पाकिस्तान 100 रुपया हामिल हजा को मुतालबे पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान का मैंने अपनी एन के नहीं पहनी हुई, बहुत छोटा प्रिंट है, से जारी हुआ, ठीक है। और नीचे लिखा है जनाब रजा बाकिर, वो गवर्नर बैंक के दौलत पाकिस्तान। कमाल है। तो रजा बाकिर साहब ने मुझे कह दिया है, उनका साइन है सिर्फ इस पे, कि ये अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इससे आप 100 रुपए की चीजें खरीद सकेंगे, एंड दैट्स ट्रू। इसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है। अगर मैं स्टेट बैंक के पास जाऊं और मैं कहूं कि ये 100 रुपया मुझे मेरा सोना दे, वो नहीं दे सकते, उनके पास है ही कोई नहीं, और उन्होंने ना गारंटी किया कि हम आपको सोना देंगे इसके एवज। तो बस इसी तरह चल रही है इकोनॉमी, और पूरी दुनिया में ऐसे चल रही है, इसको कहते हैं फिएट करेंसी। तो इसका मतलब ये कि अगर रजा बाकिर साहब और छाप दें रुपया, तो क्या मसला होगा? कोई मसला होगा? आज समझने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या होगा। अब इकोनॉमिस्ट की एक थियरी है, और करेक्ट थियरी है, जिसका नाम है क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, मगर आसान करके समझाऊंगा, घबराना नहीं है, जिस तरह इमरान खान कहता है। सबसे पहले तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, इक्वेशन में देख सकते हैं, पहली चीज है एम, बड़ा सा एम लिखा हुआ, आप देख सकते हैं एम एक्स वी इज इक्वल टू पी एक्स टी। दिस मीन्स m into v multiplied by v is equal to p multiplied by t। एक ही चीज समझाता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं। m का मतलब है मनी सप्लाई, ऑल द मनी इन द इकोनॉमी, कितने पैसे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं मुईशत के अंदर, इसी पे सारी डिबेट हो रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत पैसे ज्यादा छाप दे तो क्या होगा, इसी को हमने डिटरमिन करना है ना कि क्या होता है। अगली चीज है वी, वी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को, वेलोसिटी ऑफ मनी को कहते हैं, यानी कितनी तेजी से पैसा जो है वो गर्दिश करता है। आया कि मैं जो पैसे कमाए हैं वो मेरे जेब में ही पड़े रहते हैं सारी जिंदगी, या मैं मंडी में जाता हूँ, उनको खरीदता हूँ और बेचता हूँ। अब वेलोसिटी ऑफ मनी की बात यह है कि ये एक बड़ी कांस्टेंट चीज है, ये ज्यादा चेंज नहीं होती। मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी को आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? स्कूल की फीसें तो भरनी है, रेंट भी देना है, आपको पता है इतने खर्चे आपने हर महीने करने ही करने हैं। तो जितने आपने खर्चे हर महीने करने हैं वो एक बड़ा रेगुलर चीज है, और जिस रेगुलरिटी से आपने वो खर्चे करने हैं वो भी ज्यादा चेंज नहीं होता। इसलिए ऑन एवरेज एक बंदे के लिए तो चेंज हो सकता है, मगर ऑन एवरेज फॉर 220 और 40 मिलियन पीपल वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो बड़ी स्टेबल चीज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती। आगे चलते हैं, पी हो गया प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब है ये है इन्फ्लेशन, ये एग्रीगेट प्राइस लेवल, तमाम चीजों की प्राइस। इसमें आप सीपीआई भी डाल सकते हैं, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। वो क्या होता है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं आप, बहुत सारी चीजें लेते हैं और डिटरमिन करते हैं कि उनकी कीमतें ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। फिर एक एसपीआई होता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसको छोड़ देते हैं। तो बेसिकली प्राइस इंडेक्स, प्राइस लेवल, कीमतें ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इन्फ्लेशन का लेवल, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी आजकल
कितनी परसेंट इन्फ्लेशन होगी पाकिस्तान के अंदर? 27% या ऐसा तकरीबन 30% इन्फ्लेशन। अब शायद गिरी है दोबारा से, मगर बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई। तो ये क्या है? ये प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, ठीक है। और आखिर में ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विद इन एन इकोनॉमी, यानी तमाम वो चीजें जो पैदा हुई हैं और जिनकी खरीदो फरोख्त हो रही। जारी बात है, जो चीजें हमने पैदा की हैं पैदावारी अमल में, बायोलॉजिकल अमल में नहीं, जो हमने बनाई हैं चीजें, वो बनाई इसी मकसद के लिए। कैपिटलिज्म में तो ऐसे ही होता है कि वो हम खरीदें और बेचें, सबसे पहले बेचें और फिर उसके बाद बेचने से पैसे बनाए और फिर और चीजें खरीदें। तो बेसिकली ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हुआ कि जितनी मनी सप्लाई है उसको आप वेलोसिटी ऑफ मनी में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा कि टोटल ट्रेड कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। और टोटल ट्रेड हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि कितनी, क्या प्राइस लेवल है और ऑल ट्रांजैक्शंस कितनी है। अगर उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो वो ये दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन बराबर होती है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि वी को अगर आप कांस्टेंट होल्ड कर, वी को अगर आप चेंज, मैंने आपको कहा वी तो चेंज नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि मनी सप्लाई इनटू सम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्राइस लेवल इनटू ऑल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो या तो पी बढ़ेगा या टी बढ़ेगा, या थोड़ा थोड़ा दोनों बढ़ेंगे। अगर टी बढ़ता है तो पी गिर भी सकता है, अगर पी बढ़ता है तो टी गिर सकता है। बड़ी सिंपल लॉजिकल सी बात है और करेक्ट बात है। मनी सप्लाई अगर मैं बढ़ाऊंगा तो या तो इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी हमें ये बता रही है कि या तो वो पैदावारी चीजें, पैदावारी अमल और ट्रांजैक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज की पैदावार बढ़ जाएगी, ज्यादा चीजें तैयार पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, लोग काम करना शुरू कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और अक्सर इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि होगा ये कि प्राइसेस बढ़ेंगी, चीजें नहीं बढ़ेंगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग assumption है। क्यों प्राइसेस क्यों बढ़ेंगी, चीजें क्यों नहीं बढ़ेंगी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Why can't we print money and just have more things? Print money, work and produce more things. Why is that not possible? ये सवाल है आपके साथ। इसको समझने के लिए हमें अब मनी सप्लाई को समझना होगा, और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। ग्राफ से इंटिमिडेट ना हो, बड़ा आसान है, मैं भी समझाऊंगा। और वो ये दिलचस्प बात है कि अभी मैंने पहले आपको ये बताया कि मनी सप्लाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है। हर मुल्क के अंदर करेंसी जो है वो स्टेट बैंक का गवर्नर या फेडरल रिजर्व वगैरह वो इशू करते हैं जी। हार्ड करेंसी जिसको हम कहते हैं, ये जो रुपया मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो ये किसी ना किसी गवर्नमेंट के इदारे ने, कोई प्राइवेट बंदा तो नहीं इशू कर सकता, कोई सैयद बाबर अली तो नहीं कह सकता कि ये मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे ले लो, ऐसे तो नहीं होता। ये तो इलीगल बात होगी, उसको तो काउंटरफीट कहा जाएगा या इलीगल समझा जाएगा। करेंसी पर मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की। आज की तमाम इकोनॉमीज के अंदर, दुनिया के अंदर, लॉ के अंदर करेंसी पर मोनोपोली है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट पैसे जो है वो प्रिंट करती है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगरचे पैसे प्रिंट तो गवर्नमेंट करती है, मगर मनी सप्लाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही। शॉकिंग, शॉकिंग, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि मनी सप्लाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है मनी सप्लाई? बैंकों के कंट्रोल में। आइए देखते हैं वो कैसे है। जब फर्ज करें कि आपके पास $1000 है, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो $1000 या चले $1,00,000 है, या आपको सैलरी मिली है। जब आपको पैसे मिले तो आपने क्या करना है? आपने तकिए के नीचे तो नहीं घुसा देना उनको, आप उनको बैंक में डाल देते हैं, वहां वो महफूज है, ठीक है ना। अब बैंक्स कैसे काम करते हैं कि बैंक्स में अगर आप बहुत सारे लोग अपने पैसे बैंक्स में डाल देते हैं। अब फर्ज करें कि बैंकों के पास आ गए आपके पैसे, और एक बंदे ने $1,00,000 डाले, दूसरे ने 50,000 डाले, तीसरे ने 1,36,000 डाले, तीसरे ने 36 लाख डाले, किसी ने 1 करोड़ डाले, वगैरह वगैरह। ये सारे पैसे बैंक के पास आ गए। अब जब आप बैंक जाते हैं, आपको फीस, स्कूल की फीस देनी है, आपको बच्चों की फीस देनी वगैरह, तो आप सारे पैसे तो विड्रॉ नहीं ना करते। अगर आपके पास बैंक में बिल फर्ज $5,00,000 हैं, $10,00,000 हैं, तो उसमें से आप इस्तेमाल कितने करते हैं? मेरे अंदाजे में आप इस्तेमाल उसमें से हर महीने तकरीबन 10% करते हैं। आपकी कोशिश ये होती है 80-90% पैसे वहां पड़े रहें, हम इस्तेमाल करते रहेंगे, मगर ये सेविंग्स में पड़े, कहीं ना कहीं पड़े रह जाए, ये महफूज हो। ऑन एवरेज बैंक्स ने ये रियलाइज किया कि जो हमारे पास टोटल डिपॉजिट पड़े हैं, टोटल डिपॉजिट जो हमारे पास पड़े हुए, उसमें से जो हमारे कस्टमर्स हैं, कोई एक कस्टमर हो सकता है 80% इस्तेमाल कर ले, कोई दूसरा कस्टमर 1% इस्तेमाल कर ले, कोई तीसरा पर्सन 20% करेगा, कोई चौथा पर्सन 5% करेगा। जब हम उन सारे डिपॉजिट्स को एवरेज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कस्टमर ऑन एवरेज
जो डिपॉजिट करता है उसमें से हर महीने सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने जो पैसे दोबारा रिपीट करता हूं, आपने जो पैसे डालेंगे उसमें से सिर्फ 10% पैसे आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी पैसे वहीं पड़े हुए। मेरे लिए भी ये सच है। अच्छा जी, तो बाकी पैसों के साथ बैंक क्या करती है? जो पड़े हुए उसके पास, बैंक ये एहसास करती है कि न सिर्फ हम इन बाकी 90% पैसों को कर्जों में लोगों को दे सकते हैं, बल्कि क्योंकि हमें सिर्फ 10 जो कर्जे हम देंगे उसमें से भी सिर्फ जो जिन लोगों को हम कर्जे देंगे वो भी पैसे वापस आके हमारे बैंक में रखेंगे। तो इसका और उसमें से भी 90% पैसे हम मजीद कर्जों में दे सकते हैं, और वो जो हम कर्जे देंगे, वो जिन लोगों को हम कर्जा देंगे वो भी अपने पैसे बैंकों में रखवाएंगे, तो उसमें से भी हम मजीद 90% लोगों को कर्जा दे सकते हैं। तो इस तरह चलते चलते आप देख सकते हैं कि अगर पहले $1,000 डिपॉजिट किए जाए बैंक में, उसका 10% जो है बैंक अपने पास रिजर्व में रख ले कि ये इस्तेमाल होंगे, ये कैश में मुझे देने पड़ेंगे लोगों को, तो मैं $900 का लोन दे सकता हूं लोगों को। $900 का मैं लोन दे सकता हूं जो मेरे पास डिपॉजिट आएंगे। अब वो जब $900 का मैं लोन दूंगा तो वो जो लोग जो हैं वो जिनको मैंने लोन दिया है वो $900 भी बैंकों में आके जमा कराएंगे ना, वो कौन से तकिए के नीचे रख देंगे, तो वो $900 बैंक में वापस आ जाएंगे। अब जब मैंने देखे $900 का लोन दिया, पहले मेरे पास $1,000 थे, $900 का मैंने लोन दिया, तो मनी सप्लाई होगी मेरी इकोनॉमी के अंदर $1,900 सिस्टम के अंदर है जो सर्कुलेट कर रहा है। मैंने पैसे पैदा कर दिए, क्रिएट कर दिए। अभी मैं और करूंगा, फिक्र ना करें। बैंक के पास $100, हुकूमत ने $1,000 सिर्फ पब्लिश किया था, $1,900 अब पैदा हो चुका। वो $900 वापस आया, फिर लोगों ने बैंक में रखा, उसमें से 10% मैंने रख लिया, यानी $90 मैंने रख लिए। $810 के मैंने कर्जे दे दिए लोगों को। जब मैंने कर्जे दिए तो अब पैसे कितने हो गए? 2,710, और बैंक के पास $190। ठीक है, अब वो $810 जो वापस आए फिर बैंकों के अंदर, उसके अंदर से मैंने 10% रख लिया, यानी $81 मैंने रख लिया, और $729 मैंने फिर लोगों को कर्जे में दे। तो अब करेंसी और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह करते 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 जब मैं सारे पैसे इस्तेमाल करूं तो $1,000 का मेरे पास अगर डिपॉजिट आता है, तो जो कर्जे मैं इसमें निकाल सकता हूं, जिन लोगों को मैं कर्जे दे सकता हूं, वो तो इसके तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर 10% ही मुझे चाहिए तो इससे 10 गुना ज्यादा मैं लोगों को कर्जे दे सकता हूं। शॉकिंग बात है कि नहीं? यानी कि अगर हुकूमत $1,000 प्रिंट करती है और $1,000 सर्कुलेट कर रहा है, तो बैंक्स उस $1,000 को तकरीबन $10,000 बना देते हैं। आप शॉक हो गए होंगे, आई एम श्योर। आपके चेहरे में नजर नहीं आ रहे, मगर आई होप कि आप शॉक हो गए। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। और जितने बच्चे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो ये सब चीजें पढ़ते हैं, ये बड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स है, और ए लेवल में भी बच्चे पढ़ जाते हैं, कॉलेज वगैरह के अंदर तो पढ़ते ही। तो इसका मतलब ये है कि 90% मनी सप्लाई हुकूमत नहीं बनाती किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर। 90% मनी सप्लाई बैंक्स बनाती, और जो कि प्राइवेट इदारे हैं, और वो इस मकसद से ये मनी सप्लाई बनाते हैं कि हम कर्जे देंगे, कर्जों पर अदायगी होगी, इंटरेस्ट सूद पे हमें पैसे वापस मिलेंगे, और उसमें से हम भी पैसे बनाएंगे, और कुछ पैसे हम अपने डिपॉजिटर्स को भी देंगे, जो आपके सेविंग्स अकाउंट है, जहां से आपके पैसे थोड़े से पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। So 90% money supply, this has to be understood by everyone, is not under the control of the state bank of any country, anywhere in the world. It is in the control of the financial sector. Banks create 90% of the money in any economy. इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने फिजिकल करेंसी पैदा की, मगर इसका यह मतलब फिजिकल करेंसी उतनी ही है जितनी स्टेट बैंक ने पैदा की, मगर जो पैसे आपके पास हैं इस वक्त वो फिजिकल करेंसी से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। और यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसे हैं वो फिजिकल करेंसी से तकरीबन 10 गुना, 9-10 गुना ज्यादा है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक ग्राफ मैंने, सॉरी एक पेज मैंने स्किप किया, वापस जाएंगे उस पे, कि M0 को कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, जो स्टेट बैंक बनाती है,
उसके बाद मॉनेटरी बेस और टोटल करेंसी MB कहते हैं। फिर M1 आती है, डिफाइंड एज M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आल्सो नोन एज साइड डिपॉजिट्स और चेकिंग अकाउंट्स, ये चेकिंग अकाउंट्स में जो पैसे जाते हैं। फिर उसके बाद मनी एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स M2, फिर M3 ब्रॉड मनी। इसका मतलब ये M0 वो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, M1 M2 M3 वो है जो कि बैंक्स ने उसको मजीद मल्टीप्लाई किया है, उसको एक मजीद उसमें कर्जे दे के ऐड किया। और 90% मनी जो तकरीबन 10% होता है रिजर्व रेशियो, 90% मनी जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो प्राइवेट बैंक्स बनाते हैं इस गर्ज से कि मुनाफा उससे कमाया जाए। इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है कि जितना पैसा आपने बैंक ने बनाया उसको कितने टाइम्स जितना पैसा स्टेट बैंक ने बनाया उसको कितने टाइम्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन द मॉनेटरी बेस, परसेंटेज चेंज इन द मॉनेटरी चेंज बेस। परसेंटेज में कह लें या इसको चेंज में कह लें, जैसे वो मर्जी। सो इससे हमने सबक ये सीखा कि सरमायादारी निजाम में मनी इज क्रिएटेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। मेनली मनी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इदारे बनाते हैं और एक गर्ज से बनाते हैं। वो मजीद पैसा बनाकर प्राइवेट सिटीजन्स को देते हैं, हुकूमत को कभी कभार हुकूमत को भी देते हैं, मगर बेसिकली वो प्राइवेट सिटीजन्स को देते हैं। और इस मकसद से देते हैं कि उसको वो इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो कर्जा वापस अदा करेंगे तो हमारे पास पहले से ज्यादा पैसे हो जाएंगे। कुछ पैसे हम रख लेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर जहां से इतनी बड़ी बड़ी हमारी तनख्वाहें आती है, पैसा आता है, और कुछ पैसे हम अपने डिपॉजिटर्स को दे देंगे। एक्चुअली डिपॉजिटर्स को इतना ज्यादा मिलता भी नहीं है, ज्यादातर तो फाइनेंस सेक्टर उठा लेता है। So इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कैन नॉट रीजनेबली कंट्रोल द मनी सप्लाई बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट 90% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन। कितनी मजेदार बात है, गवर्नमेंट के तो कंट्रोल में ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जब बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करती है मनी सप्लाई, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई को लेट्स से कि $1,000 से भी बढ़ाती है, 1 लाख रुपए भी ऊपर छाप देती है, तो बैंक्स उसको मजीद 10 लाख रुपए बना। अगर गवर्नमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपया छापती तो बैंक्स उसको 10 करोड़ रुपया बना। तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा छापेगी वो 10 गुना बढ़ जाएगा बैंक्स की वजह से, और एकदम से मनी सप्लाई जो है उसमें एक किस्म का 10 गुना इजाफा हो जाए। थोड़ा सा भी गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंट करेगी मनी तो बहुत ज्यादा मनी सर्कुलेशन में चला जाएगा बैंक्स की वजह से। और यही वजह है कि गवर्नमेंट्स जो है वो मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा प्रिंट करेंगी तो जितना वो प्रिंट करेंगी उससे बहुत ज्यादा गुना पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा प्राइवेट बैंक्स की वजह से। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करती है? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके, जिसको काइबोर कहते हैं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट होता। अब फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ये गौर किया कि उसने ग्राफ किया एक तरफ इन्फ्लेशन को और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट को, और ये उसके पास स्कैटर प्लॉट आया जिसके अंदर से उसने लकीर यूं करके खींच के कहा कि ऐसा नजर आ रहा है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। मतलब मजदूर के लिए तो दोनों तरफ से ही तबाही है। जब बेरोजगारी कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, मजदूर के पास नौकरी होती है मगर उसकी आमदनी गिरती रहती है, और जब महंगाई खत्म होती है तो बेरोजगारी शुरू हो जाती है। यानी कि महंगाई तो नहीं हो रही मगर मेरे पास जॉब ही कोई नहीं है। वर्किंग क्लास के लिए तो दोनों तरफ से तबाही। दैट्स व्हाट फिलिप कर्व शो। अब फिलिप्स कर्व में फिलिप ये कहता था और इकोनॉमिस्ट आज ये कहते हैं कि ये जो मामला है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कि हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करें। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि कम लोग जो हैं वो आकर कर्जे वगैरह लेंगे। वो कहेंगे यार कर्जा लेना तो बड़ा मुश्किल है, वो 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर्जा ले रहा। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होंगे तो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन करेगी, कम तेज चलेगी, कर्जे जो है वो कम लोग लेने के लिए तैयार होंगे, मनी सप्लाई भी लिहाजा कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि लोग कर्जे नहीं ले रहे होते। मनी सप्लाई जब कम होती है तो इन्फ्लेशन फिर कम होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाएं तो इससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। अभी इस वक्त काइबोर जो रेट है वो 15.3% या कुछ 15.25% पे है।
15% पे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। क्या मकसद है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश की। और इसका मतलब मगर ये कि इकोनॉमी तेज ग्रो नहीं करेगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात हमें लगती, मुझे बड़ी फनी बात लगती है जब लोग कहते हैं इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग। ये ओवर हीटिंग क्या है भाई? लोग बेरोजगार पड़े, लोगों को चीजें चाहिए, लोग काम करना चाहते हैं, आप ओवर हीटिंग क्या कह रहे हैं? ओवर हीटिंग का मतलब यही होता है कि बेसिकली बहुत ज्यादा कर्जे बैंक्स दे रहे हैं और उसके वजह से मनी सप्लाई बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम है मगर इन्फ्लेशन बहुत तेज हो रही है। सो लिहाजा इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ता है। कैपिटलिस्ट खुद इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर दूसरी तरफ मामला हो कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो, तो कभी वो इंटरेस्ट रेट्स गिरा सकते हैं कि इकोनॉमी तेज हो, मनी सप्लाई तेज हो, कर्जे जो है वो ज्यादा दिए जाए, लोग बिजनेसेस स्टार्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, अगरचे कहीं ना कहीं पे उसके नतीजे में इन्फ्लेशन भी बढ़े। तो इसको कहते हैं फिलिप्स कर्व। तो ये हुकूमत के पास एक टूल है, बड़ा ही स्टूपिड किस्म का, इनडायरेक्ट, बड़ा ही दूर से टूल है उनके पास कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो या कम कर दो ताकि इकोनॉमी ऊपर या नीचे हो जाए। अगर ऊपर होगी इकोनॉमी तो चलो अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट होगी मगर इन्फ्लेशन होगी, अगर नीचे होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी मगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये ऑप्शंस हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, अंदाजा करें। सो अब आते हैं एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ। व्हाट इफ, इमेजिन करें एक दुनिया, मुझे पता है इमेजिन करना आजकल बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ये सबक सिखाते रहते हैं, इमेजिन नहीं करना कुछ डिफरेंट, जो है वही ठीक है। टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, जिसको कहते हैं देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना हमें सिखाया गया कि बस यही, इसी तरह सोसाइटी चल सकती है और किसी तरह नहीं चल सकती। मगर इमेजिन करें एक और किस्म की सोसाइटी। इमेजिन करें एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें मनी सप्लाई प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में ना हो, हुकूमत के कंट्रोल में। हुकूमत जितने पैसे इशू करे बस उतने ही पैसे हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम ना हो। और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं या पैदा करते हैं, मनी सप्लाई को पैदा करते हैं इस मकसद के लिए कि उसमें मुनाफा कमा सके, ये पूरा निजाम ही ना हो। यानी कि इमेजिन करें कि अगर बैंकिंग ही ना हो, ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, शायद आप भी ना इमेजिन कर सकते। चले थॉट एक्सपेरिमेंट करें ना, थॉट एक्सपेरिमेंट करें। फर्ज करें कि बैंक्स होते ही ना, या किसी तरह कोई पुटो की तरह आके उसको उनको नेशनलाइज कर देता, उनको खत्म कर देता, कहता हमें बैंकिंग चाहिए ही नहीं। या कोई क्रेजी इस्लामिस्ट आके कहता है कि बस हाँ ये तो बैंकिंग शैंकिंग जो है, तकी उस्मानी साहब गलत कह रहे हैं और बैंकिंग होनी नहीं चाहिए, इस्लाम के अंदर बैंकिंग की इजाजत नहीं है, बैंकिंग खत्म कर दे। इमेजिन करें बैंकिंग खत्म हो जाए और मनी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में हो। और फिएट मनी तो एस्टेब्लिश हो चुका है, पेपर मनी एस्टेब्लिश हो चुका है, उसके लिए कोई गोल्ड रिजर्व वगैरह की जरूरत नहीं। ये स्टेट के कंट्रोल में आ जाए, एक्चुअली स्टेट के कंट्रोल में आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि ऐसी सोसाइटी में, ऐसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट वुड पोटेंशियली हैव एन इनफिनिट पूल ऑफ मनी टू हायर लेबर एंड डेवलप द इकोनॉमी। हुकूमत की मर्जी, वो जितना मर्जी पैसा प्रिंट करते रहे, पब्लिश करते रहे, प्रिंट करें और लोगों से काम करें, प्रिंट करें और लोगों से काम करें, प्रिंट करें और लोगों से काम करें। एजुकेशन का मसला ठीक करना, 25 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है, कितने स्कूल लगाने हैं जी? 25,000 स्कूल नए बनाने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम, ये प्रिंट करो, मैं पैसा ये लो, 25,000 स्कूल बना। क्या ये हो सकता है? अस्पताल कम है जी पाकिस्तान के अंदर, कितने अस्पताल चाहिए जी? कम से कम हमें जो है ना 1000 न्यू हॉस्पिटल्स विद इन 5 years बनाने, नो प्रॉब्लम। हाउ मच विल इट कॉस्ट? इतनी कॉस्ट होगी, प्रिंट द मनी, अस्पताल बना दो। क्या ये हो सकता है? साउंड्स इम्पॉसिबल। सड़कें बनानी, नो प्रॉब्लम, प्रिंट द मनी। क्या कहते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन करनी है, सिटीज नहीं बनानी है, नो प्रॉब्लम, प्रिंट द मनी। हाईवेज बनाने, ब्रिजेस बनाने, डैम्स बनाने, नो प्रॉब्लम, प्रिंट द मनी। क्या ये हो सकता है? कंप्यूटर्स बनाने, फोन्स बनाने, ये बनाना है, वो बनाना है, नो प्रॉब्लम। हाउ मच विल इट कॉस्ट? इट विल कॉस्ट दिस मच, प्रिंट द मनी, गो एंड मेक इट। क्या ये हो सकता है? साउंड्स इम्पॉसिबल। ये दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये नहीं हो सकता, कुछ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्या चीजें होंगी जो हमें देखनी पड़ेंगी? जिस थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे चलते हैं। फॉर स्टेबल प्राइसेस एंड मैक्सिमम ग्रोथ, गवर्नमेंट वुड हैव टू इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। यानी एक तरफ गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है पैसे, ठीक है, और जब गवर्नमेंट प्रिंट करती है पैसे और वो कहती है कि ये स्कूल लगा दो, ये अस्पताल लगा दो, ये फोन बनाने शुरू कर दो, कंप्यूटर बनाने शुरू कर दो, तो पैसे वो प्रिंट अगर करके वैसे लोगों को पकड़ा दे, ये लो यार 10 रुपए तुम ले लो, ये लो 100 रुपए तुम ले लो, गरीबों को में तकसीम कर दे, तो कोई चीज पैदा ही ना हो, उसके नतीजे में कोई नई पैदावार ही ना हो, तो क्या होगा कि इकोनॉमी की, मनी की जो वैल्यू है वो ठप करके नीचे गिर गई, मनी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर मैं पैसे प्रिंट करके किसी ऐसे बंदे को देता हूं, जैसे बैंक्स ऑलरेडी कर रहे हैं,
किसी ऐसे बंदे को देता हूँ जिसे मैं कहता हूँ कि इससे तुमने चीज बनानी। अगर मैं प्रिंट करके लाख रुपए तुम्हें देता हूँ तो तुमने उससे पैदावार कम से कम 2 लाख रुपए की करनी है, चीजें बना के देनी है जिनकी वैल्यू कम से कम 2 लाख रुपए की होगी। तो बैंक्स यही तो करते हैं, पैसा पैदा करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, आपने वापस हमें जो कर्जा अदा करेंगे ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम वगैरह वगैरह, तो वो 1 करोड़ प्लस ये इंटरेस्ट सूद होगा। ऐसे ही होता है ना। तो और जो एक्चुअल पैदावार होती है वो 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट प्लस सरमायादार जो प्रॉफिट और पैसे कमाता है, वो सारी चीजें उसमें शामिल होती है। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का बैंक कर्जा देता है, उसमें से जो पैदावार होती है वो 1 करोड़ रुपए की तो नहीं होती, हो सकता है वो 10 करोड़ रुपए की हो सकता है वो 5 करोड़ रुपए की हो सकता है वो 2 करोड़ रुपए की हो। जाहिर बात है कि अगर वो 1.5 करोड़ या करोड़ रुपए की सिर्फ पैदावार होगी तो फिर तो वो कर्जा पूरा नहीं अदा कर सकेगा। मगर बैंकिंग में लोग कर्जे अदा करते ही है ना आफ्टर ऑल, इसीलिए तो बैंकिंग चलती है। अगर लोग कर्जे अदा ना करते ऑन द होल तो बैंकिंग तो खत्म हो चुकी होती कब की। तो दे आर पेइंग द मनी। सो व्हाट इफ द गवर्नमेंट डिड दैट? It created a debt by printing money. It said, we'll print the money. हम 1 करोड़ रुपया तुम्हें दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुमने पैदावार करके देनी है, जो चीज तुम बनाओगे उसकी वैल्यू कम से कम 2 करोड़ रुपए की, या चलो कम से कम 1 करोड़ रुपए मैंने आपको दिया है, 1 करोड़ रुपए की आपने चीजें बना के देनी। अब देखें, मनी सप्लाई 1 करोड़ से बड़ी, सप्लाई ऑफ मनी 1 करोड़ से बड़ी और प्रोडक्ट्स भी 1 करोड़ से बड़े। अब मनी सप्लाई जितनी बड़ी है उतने ही प्रोडक्ट्स बड़े, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि मनी की वैल्यू नहीं गिरे। अगर मैं पैसे ज्यादा छाप दूं और पैदावार कम हो तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर मैं पैसे छापूं और पैदावार उससे ज्यादा हो तो मनी की वैल्यू चढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी दिलचस्प बात है। अच्छा, आगे चलते। तो कंस्ट्रेंट्स ये हुए, वही जो मैंने पहले आपको कहा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, कि मनी सप्लाई वेलोसिटी ऑफ मनी तो मैंने आपको बता दिया था कांस्टेंट है। तो एक प्राइस लेवल है और एक टी है, ऑल ट्रांजैक्शंस को आप भूल जाए, ट्रांजैक्शन तभी होती है जब कोई चीज बनती है। तो ऑल प्रोडक्ट्स देख लेना। तो इसका मतलब ये है कि पी और टी को आप स्टडी करें। अगर आपने पैसे छापे और उसके नतीजे में आपने 1 करोड़ नहीं, आपने 10 करोड़ रुपए छापे, अगर आपने गरीबों में 10 करोड़ रुपए छाप दिए तो आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई। मगर अगर आपने 10 करोड़ रुपए छाप कर उससे चीजें बनाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रोडक्ट्स, जूते, कपड़े, आई डोंट नो, जो भी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें वगैरह वगैरह जो भी, और फिर वो चीजें मंडी में गई और मंडी में वो चीजें बिकी उसी पैसों से जो आपने सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट किए, तो क्या होगा कि उसके नतीजे में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मगर क्योंकि टी भी इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, टी भी इंक्रीज हो रहा है, तो पी को क्या होगा? पी कांस्टेंट रहेगा, कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी। अगर टी जो है वो पी से, अगर टी जो है वो एम से ज्यादा बढ़ जाए तो पी इनफैक्ट गिर जाएगा, प्राइस लेवल गिर जाएगा। अगर टी जो है वो बढ़ता है मगर एम ज्यादा बढ़ता है तो प्राइस लेवल चढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। और ये मैथमेटिकली इट फॉलोज फ्रॉम द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रेंट है ऐसी सोसाइटी में जो ये काम करे, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी पैदा कर सकते, 100% एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अनएम्प्लॉयड होएगा ही नहीं, हम पैसे छाप के काम करा लेंगे उससे, जो हमारे दिल चाहेगा हम काम करा सकते हैं, बेस्ट काम करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी है, जितना लेबर है उतना मनी है हमारे पास। तो इसमें कंस्ट्रेंट सिर्फ ये होगा कि जब हम पैसे छापते हैं उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स पैदा होंगे वो उनकी वैल्यू, जितने पैसे हमने छापे उनकी वैल्यू के बराबर होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। अदरवाइज हमारी पैसे की वैल्यू तबाह हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो हम वैसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा? कुड दिस फॉर एग्जांपल एंड पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ अंडर डेवलपमेंट? क्योंकि सारा जो लेबर है पाकिस्तान का, जो इस वक्त बेकार पड़ा हुआ है, घर बैठा हुआ है, बाहर वीजा लेकर या इलीगली बाहर जाके काम करने के लिए डेस्परेट है, मर रहा है, और इतने सारे काम जो हम कर नहीं सकते, सडनली पाकिस्तान वुड हैव ऑल द मनी in the world that we ever need to do the work that we need to be done. We have the labor to do it. हमारे पास लोग हैं जो वो काम कर सकते हैं, हमारे पास काम है जो करने वाले हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं है जिसके नतीजे में हम वो काम कर सकें। मगर पैसे हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, रियासत के पास, पब्लिक के पास मनी सप्लाई पर कंट्रोल नहीं है। मनी सप्लाई पर कंट्रोल जो है
وہ 1% लोगों के पास, बल्कि 1% भी नहीं 0.1% लोगों के पास है जो बेसिकली बैंकर्स हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करते हैं और हैंडल करते हैं। अगर ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर होता ही ना, मनी सप्लाई सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंट्रोल में होती, तो आप जितने मर्जी काम कराना चाहें आप करवा सकते हैं, बशर्ते कि जितने पैसे आप छापें उसके एवज उतने ही प्रोडक्ट्स भी तैयार हों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट वाज द थॉट एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसके साथ अपनी बातचीत खत्म करता हूं और ये सवाल आपके सामने रखता हूं कि अगर हम ऐसा कर लें तो क्या हम पाकिस्तान की क्राइसिस ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डेट ट्रैप और जो लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप है उसमें से निकल पाएंगे या नहीं? थैंक यू। आई विल एंड माय लेक्चर हियर एंड आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम। बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum, sir. I have a question. Yes. Sir, I'm a student of Department of History from Karachi University. Sir, मेरा जी question अपना नाम भी बता दो प्लीज। फरजीन फातिमा। जी फरजीन। सर मेरा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस थे, पर सबसे पहला क्वेश्चन ये था सर, जिस तरह आपने बताया कि इकोनॉमी जो है मतलब मनी को जरूरी है कि वो मतलब प्रोड्यूस करे मोर मनी इकोनॉमी को तरक्की करने के लिए, तो सर अगर हम आज चैरिटी हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत है, तो फिर ये तो इकोनॉमिक तरक्की के लिए अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि ये तो मतलब नहीं है अच्छी। मेरा ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं टोटली आपसे इत्तेफाक करता हूँ। चैरिटी जो है वो डेवलप नहीं कर सकती इकोनॉमी को। चैरिटी जो है वो किसी भूखे के लिए तो बहुत जरूरी है, उसको खाना खिला देगी, उसकी अगर उसने अस्पताल जाना है, दवाइयाँ हासिल करनी है, तो आपको डेफिनेटली चैरिटी करनी चाहिए, आपको पैसे देने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, इजाफी पैसे हैं, हमारा दीन भी ये कहता है, ह्यूमैनिटी भी हमारी ये कहती है कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो चैरिटी बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं चैरिटी। मगर अगर कोई ये समझता है कि चैरिटी के नतीजे में इकोनॉमिक पाकिस्तान की मईशत अपनी अंडर डेवलपमेंट से बाहर निकल आएगी, अंडर डेवलपमेंट के ट्रैप से बाहर निकल आएगी, एकदम से एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। इकोनॉमी तब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनेगी जब हम चीजों को नए तरीके से करना सीखेंगे, और जैसे मैंने शुरू में लेक्चर में कहा, और नए तरीके से हम करना तब सीखेंगे जब हम उनको करना शुरू करेंगे। अगर हम अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे तो हम नए तरीके से कैसे करना सीखेंगे? और उसको करने के लिए जरूरी है कि कोई हमें एम्प्लॉय करे, और एम्प्लॉय हमें करता कोई नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सारा पैसा बाहर चला जाता है, और जो पैसा यहाँ पे होता है वो सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है कि किसी दूसरे के मुनाफे के लिए वो इस्तेमाल हो। जो मनी क्रिएट होता है वो इसीलिए क्रिएट होता है कि किसी दूसरे के मुनाफे के लिए, ना कि समाज के वेलफेयर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर दें, इस बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दें हैं, और हम ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर लें जिसके अंदर मनी सप्लाई जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में आ जाए, और हुकूमत जो है वो मनी सप्लाई को इस्तेमाल करे प्रोडक्टिवली टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग दैट वी वांट द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन। तो मेरा सवाल है, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको बता नहीं रहा कि इससे सब ठीक हो जाएगा, मेरा सवाल है, तो फिर क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि सर स्टार्टिंग में जो हमने बात की कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल चीज़ें ही प्रोड्यूस कर पा रहा है और एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो सर अगर हम पाकिस्तान को ना लें या किसी आइडियल इकोनॉमी को लें, अगर तो क्या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चरल चीजों को एक्सपोर्ट करके क्या इकोनॉमिक मतलब पीक पर पहुंच सकती है, या एक बहुत स्टेबल इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बन सकती है, या टेक्नोलॉजी में हमें मास्टर होना ही पड़ेगा इकोनॉमिक तरक्की के लिए? बड़े अच्छे सवाल हैं आपके फरजीन, और डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर जो है वो उसमें उससे अगला स्टेप इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क़याम है, और पाकिस्तान के अंदर यही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टॉल हो चुकी है, यानी हम उसको मुकम्मल नहीं कर सके। हम अभी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं और हमें सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइज करने की ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और बाय द वे, जब हम सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कॉम्बाइंस, ये वो सब चीज़ें बनाना सीखेंगे, तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, आप शॉक होंगे ये बात सुन के, दुनिया के अंदर लोएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान 127 नंबर पे है शायद पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसकी वजह ये है कि हम एग्रीकल्चरली बहुत इफिशिएंट नहीं है, बहुत इनएफिशिएंट है, बहुत ज्यादा लेबर इस्तेमाल करते हैं थोड़े से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या वजह है?
کیونکہ ہمارا ایگریکلچر میکنائز نہیں ہے. میکنائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم انڈسٹریلائز نہیں. انڈسٹریلائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم انڈر ڈیولپمنٹ کے ایک ٹریپ میں پھنسے ہیں. یہ میرا تھیسس. تھینک یو. کوئی اور سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں جو لوگ سن رہے تھے ابھی گفتگو کو. تیمور میں یہ بات کہ آپ نے کیا ڈاکٹر ریاض آپ کے اس میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. آواز کلیئر نہیں ہے جی. دوبارہ بولیں. آگے کے لیے جی دوبارہ بولیں. اگر آپ کی آواز کلیئر نہیں تو آپ کوشچن ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ریاض آپ کریں سوال. آواز نہیں مجھے آ رہی. خیال سے ان کے نیٹ کا کوئی زیادہ ایشو ہو رہا ہے, آواز کلیئر نہیں آ رہی. What about our nationalized experience of 1972? بہت اچھا سوال ہے. آپ کو دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ جب نیشنلائزیشن وغیرہ ہوئی تو اس کے بعد جو گروتھ ریٹ تھا پاکستان, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 65 کے بعد پاکستان کا گروتھ ریٹ سٹیگنیٹ کرنا شروع کر دیا. کیوں سٹیگنیٹ کرنا شروع کیا؟ کیونکہ جب ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی تو اس کے بعد امریکہ ہم سے بڑا پریشان تھا, اور امریکہ نے اپنی اسسٹنس اور ایڈ جو ہے 65 کے بعد کم کرنی شروع کر دی, اور اس کی وجہ سے اکانومی بھی سٹیگنیٹ کرنی شروع ہو گئی. اور جب 71 کے اندر جب ملک ٹوٹا تو اس کی وجہ سے ایک بڑی سیویئر اکنامک سیٹ بیک ہوا. اور 72 کے اندر جب نیشنلائزیشن ہوئی تو پہلے سال کے اندر نیشنلائزیشن کے نتیجے میں ایک ہیوج سرج آف کیا نام ہے گروتھ ہوا. مجھے اب ایگزیکٹ اعداد و شمار ذہن سے نکل رہے ہیں کہ وہ تقریباً 8% سے زیادہ اکانومی جو ہماری تیزی سے گرو کر رہی تھی. اور پھر 1973 کا اوپیک کرائسس آیا جس میں آئل کی قیمتیں جو ہے ایک دم سے آسمان کو چھونا شروع ہو گئی. یہ جو 73 کا اکنامک کرائسس تھا اس کی وجہ سے بھٹو پیریڈ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ گروتھ تھی وہ اتنی تیز نہیں ہوئی جتنی ہو سکتی تھی. پوری دنیا کے اندر اسٹیگفلیشن ہوئی, صرف پاکستان کے اندر نہیں. تو لہٰذا یہاں پہ جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی اس سے ثابت یہ ہوا کہ نیشنلائزیشن جو ہے وہ تو بڑی فلاپ چیز ہے. حالانکہ ریزن فار economic growth slowdown had number one already occurred under Ayub, and number two the major reason was OPEC, اور اس چیز کو کنفلیٹ کر دیا جاتا ہے with nationalization. پھر آپ غور کریں کہ اکانومی جب ریکور کرتی ہے تو ڈی نیشنلائزیشن نہیں ہوئی. 80s کے اندر اکانومی بڑی تیز گرو کر رہی تھی, 6% سے زیادہ گرو کر رہی تھی. سوائے مسلم کمرشل بینک کے باقی ساری چیزیں جو بھٹو نے نیشنلائز کی تھیں وہ ڈی نیشنلائز نہیں کی ضیاء الحق نے, وہ اسی طرح نیشنلائز ہی رہیں. ڈی نیشنلائزیشن تو پھر جا کے 90s میں ہونی شروع ہوئی. اب 90s میں ڈی نیشنلائزیشن کیوں ہونی شروع ہوئی؟ کیونکہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسنا شروع ہو گئے. جب ہماری گروتھ سلو ڈاؤن ہو گئی سوویت یونین کی توڑ پھوڑ کے بعد, ورلڈ اکانومی کے اندر میسو اسٹرکچرل چینجز کے بعد, ایڈ وغیرہ افغان جہاد کے ختم ہونے کے بعد, اس کی ایڈ کی خاتمے کے بعد جب ہماری اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہوئی تو اگین ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو گئے, بجٹ ڈیفیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے, اور پیسے ڈیفیسٹ تو پہلے بھی تھے مگر وہ بڑھتے چلے گئے, قرضے لینے پر مجبور ہو گئے وغیرہ وغیرہ, اور ریاستی ایسیٹس جو ہے وہ بیچنے پر مجبور ہو گئے. تو اس کے بعد پھر یہ اکانومسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ تو انڈسٹریز پہلے خسارے میں جا رہی تھیں تو منافع بخش ادارے ہی نہیں تھے. تو اب یہ تو بڑی اسٹوپڈ آرگیومنٹ اس لیے ہے کیونکہ بھائی وہ تو کبھی ان کو پروفٹ کی بیسس پہ چلایا ہی نہیں گیا تھا. مطلب ہے پبلک سیکٹر کو تو کبھی اس بیسس پہ چلایا ہی نہیں جاتا کہ یہ منافع بخش بنایا جائے. اس کو واپڈا کو اس بیسس پہ تھوڑی پہ چلایا جاتا ہے کہ اس کو منافع بخش بنایا جائے. واپڈا 60 سے 50 سے چل رہا ہے تو اس کو ہمیشہ اس بیسس پہ چلایا گیا کہ یہ کنزیومر کو سبسیڈائز کرے گا, تو یہ لاس اٹھائے گا کنزیومر کو تاکہ فائدہ ہو. اور پاکستان کی گروتھ اور انڈسٹریلائزیشن تیز ہو, اگر بجلی سستی ہوگی تو لوگ فیکٹریاں لگائیں گے. اسی طرح ریلوے کا بھی یہ تھا کہ ریلوے نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ کنزیومر کو سبسیڈائز کیا ہے. اگر ریلوے چاہے تو اپنا ریٹ بڑھا سکتی ہے, واپڈا چاہے اپنا ریٹ بڑھا سکتی ہے, بڑھا بھی رہے ہیں.
اگر وہ ریٹ بڑھائے گی تو وہ منافع بخش ادارہ بن جائے گا. اگر وہ ریٹ بڑھائے گی تو وہ پیسے جو کنزیومر کو جا رہے ہیں وہ اب اس ادارے کو آ جائیں گے. تو ادارہ جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی کو اس طرح سے نہیں آپ گیج کر سکتے. پبلک سیکٹر کے کسی بھی ادارے کی ایفیشنسی کو اس طرح سے آپ گیج نہیں کر سکتے کہ وہ منافع بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا, کیونکہ اس کی پرائسنگ جو ہے وہ مارکیٹ کے میکینزم کے تھرو ہوتی نہیں ہے. اس کی پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ ایک اور پولیٹیکل پریروگیٹو کے ذریعے یا براڈر اکنامک پریروگیٹو کے ذریعے کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ تیز انڈسٹریلائزیشن ہو تو ہم کہتے ہیں بجلی سستی کر دو اور ٹرانسپورٹیشن سستی کر دو تو اکنامک گروتھ بڑی تیز ہو جائے گی. تو لہٰذا بجلی کے بنانے والے ادارے اور ٹرانسپورٹ کے اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پرائسز نہیں چارج کرنی, تو وہ ان کی پرائسز گر جاتی ہیں تو وہ منافع نہیں کما سکتے. مگر وہ پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے اور سوسائٹی کو اوور آل فائدہ ہوتا ہے, سوسائٹی بینیفٹ کرتی ہے. اب سوسائٹی اگر ٹرن اراؤنڈ کر کے یہ پھر کہے اتنا 70 سال فائدہ اٹھانے کے بعد کہ بھئی آپ تو منافع ہی نہیں کما رہے, منافع تو سارا ہم نے اس ادارے نے آپ کو دے دیا ہے, اور جس لوگوں نے منافع کا فائدہ اٹھایا وہ مڑ کے کہیں کہ آپ تو منافع نہیں دے رہے. جن لوگوں نے وہ سبسڈی انجوائے کی ہے وہی مڑ کے کہیں, پبلک مڑ کے کہیں کہ آپ تو ہمیں فائدہ نہیں دے رہے, تو آپ تو منافع نہیں کما رہے. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے. جج آپ نے ایفیشنسی, پبلک سیکٹر کی ایفیشنسی کو جج کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ پروفٹ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ پر یونٹ جو چیز وہ بنا رہے ہیں وہ سستی بنا رہے ہیں یا مہنگی بنا رہے ہیں, پر یونٹ کاسٹ کیا ہے. اس کا سب سے اچھا اگزامپل آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ واپڈا بھی بجلی بناتا ہے اور آئی پی پیز والے بھی بجلی بناتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ واپڈا جو بجلی بناتا ہے پر یونٹ اس کی کیا کاسٹ ہے, اور آئی پی پیز جو بجلی بناتے ہیں پر یونٹ اس کی کیا کاسٹ ہے. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ایفیشینٹ ادارہ کون ہے. واپڈا زیادہ ایفیشینٹ ہے اگرچہ وہ منافع نہیں کما رہا, یا آئی پی پی زیادہ ایفیشینٹ ہے اگرچہ وہ بہت منافع کماتے ہیں, ہیوج منافع کماتے ہیں. تو ایکچولی efficiency cannot be judged by profit, it has to be judged by per unit cost of the product that they are creating. اسی طرح ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ ریلوے کی ایفیشنسی اس طرح سے نہیں جج کرنی چاہیے کہ کیا وہ پیسے بنا رہے ہیں نہیں. ریلوے کی ایفیشنسی اس طرح سے جج کرنی چاہیے کہ پر کے جی جو گڈز وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں وہ کاسٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کو. اگر وہ کاسٹ روڈ سے زیادہ کرتی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتا ہے, یا وہ ریلوے سے زیادہ کرتی ہے جو پبلک سیکٹر سے ہوتا ہے. جب آپ اس طرح سے ایفیشنسی کو جج کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایکچولی پبلک سیکٹر جو چیزیں بنا رہا ہے وہ ایفیشینٹلی بنا رہا ہے, مگر وہ اتنی سستی ان کو دے رہا ہے پبلک کو کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے ادارے کو منافع نہیں ٹرن اراؤنڈ کر کے دے سکا. تو دیٹ از دا ریالٹی. اور دوسری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پبلک سیکٹر میں اگر کوئی انفیشنسی ہے, ایک تو کرپشن وغیرہ اپنی جگہ اور مس مینجمنٹ تو اپنی وجہ ہے, مگر اس سے بڑی جو مس مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فار دا لاسٹ سیورل ڈیکیڈز ہم نے پبلک سیکٹر کے اندر انویسٹ نہیں کیا. واپڈا کے اندر انویسٹ نہیں کیا, ریلویز کے اندر انویسٹ نہیں کیا, ہم نے سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کیا, ٹیلی کمیونیکیشنز میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ, کیونکہ حکومت کیا کہتی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کیسے انویسٹ کریں. تو ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا اگر پبلک سیکٹر کے اندر, تو پبلک سیکٹر گرو ہی نہیں, ٹیکنالوجیکلی اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہی نہیں ہوئی, اس کی انفراسٹرکچرل گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی, بلکہ ہم نے پبلک سیکٹر کو اسی طرح سے استعمال کیا کہ سیکٹر بن گیا ہے, 60s میں بن گیا ہے, 70s میں بن گیا, اب اس میں سے نچوڑ کے جو ہم لے سکتے ہیں وہ لے لیں, مگر اس کی فردر اپ گریڈیشن ڈیولپمنٹ, اس کی دیواریں پینٹ کرا دو بھائی, نئے انجنز لے آؤ, نئی بوگیز لے آؤ, نئے جو آپ کے کیا کہتے ہیں جو آپ کے ٹربائنس وغیرہ ہیں وہ اپ گریڈ کرو, نئی تارے بچھاؤ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ کرو. وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کیسے کر سکتے ہیں. پیسے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ پیسے کی کریشن تو ساری بینکس کرتے ہیں. تو لہٰذا پبلک سیکٹر کو نیگلیکٹ کیا گیا, اس کی نیگلیکٹ کی وجہ سے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو انفیشینٹ ہو چکے ہیں. اگر یہ نیگلیکٹ نہ ہوتا اور ہم اگر اس میں انویسٹ کرتے تو ڈیفینیٹلی ان کا اسکیل اتنا بڑا ہے, اگر ان میں نئی ٹیکنالوجی ڈالی جائے. نمبر 1 ریزن فار, بائی دا وے میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ بھی اکانومسٹ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہمیں سب سکھاتے رہتے ہیں دن رات کہ جو لوکس آف اونرشپ ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے ایفیشنسی کو. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پرائیویٹ ہمیشہ ایفیشینٹ ہے, گورنمنٹ انیفیشینٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ میں اونرشپ کسی کی نہیں ہے. ایکچولی دس از ٹوٹل بولکس, دس از ایبسولوٹ ربیش. ہمیں بہت ساری اسٹڈیز ہیں جنہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ لوکس آف اونرشپ ہیز نو کوریلیشن ود ایلوکیٹو ایفیشنسی اور ود efficiency in terms of production, not in terms of profit. اور انفیکٹ ثابت یہ ہوتا ہے کہ efficiency is very closely related to technology. اور جو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب آپ نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں لاتے رہیں گے, اپنا ہارڈ ویئر جس کو کہتے ہیں اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں گے, تو چیز ایفیشینٹ ہوگی. اور جو لارج اسکیل انڈسٹری وہ ہمیشہ اسمال اسکیل انڈسٹری سے آن دا ہول سٹرس پیربس زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. تو ہم نے وہ جو انفراسٹرکچر ہے پبلک سیکٹر کا اس کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. اب جو وہ پیچھے رہ گئے ہم کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے, پیچھے اس لیے رہ گئے کیونکہ ہیو انویسٹڈ. یہ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اگر سید بابر علی لمز لگا دیں ایک دفعہ اور اس کے بعد 20 سال اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو, اس کی کوئی دیواروں کو پینٹ نہ کیا جائے, اس کے دروازے نہ ٹھیک کیے جائے, اس کا فرنیچر نہ ٹھیک کیا جائے, اس کے اوور ہیڈ
स्लाइड्स और प्रोजेक्टर्स वगैरह ठीक ना किए जाएं, चौक ना को खरीद के लाए, कोई उसको पेमेंट्स वगैरह ठीक ना करे दोबारा से, तो क्या लम्स ग्रो करेगा? नहीं करेगा, पीछे रह जाएगा, बाकी इंस्टीट्यूशंस आगे निकल जाएंगी। तो पब्लिक सेक्टर हैज बीन डिलिबरेटली नेग्लेक्टेड, parasitically neglected by the political class of Pakistan, because political class of Pakistan तो basically कैपिटलिस्ट की है और उनको परवाह नहीं उस पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिक को सर्व करता है। हाँ, वो पब्लिक सेक्टर जो एलीट को सर्व करता है उसके बारे में आप गौर करें कि वो बहुत एफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, वो इनफैक्ट HSN कॉलेज है। HSN कॉलेज आप जानते हैं एक नॉन प्रॉफिट स्कूल है, प्रॉफिट मेकिंग स्कूल नहीं है। और जब मैं वहाँ पढ़ता था वहाँ पे फीस जो थी वो 5,000 रुपए थी सिर्फ। और आप जानते हैं कि उसका जो बोर्ड है वो पंजाब गवर्नर के मातहत आता है, गवर्नर ऑफ पंजाब के मातहत आता है, और वो एक पब्लिक सेक्टर है। और कोई कह सकता है कि HSN कॉलेज की पढ़ाई बड़ी बुरी है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि वो प्राइवेट इदारा नहीं है? बेस्ट पढ़ाई है। इवन इंडिया के अंदर आप देखिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, वो टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, प्रोवाइडेड वहाँ पे एलीट जाए। और इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो छोटे वर्किंग क्लास प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो टेरेबल है। वो एक कमरे के अंदर प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ ना तो कोई पढ़ाई होती है, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन होती है। तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इसी तरह और चीजें आप देख सकते हैं, DHA वगैरह को देखें आप, कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन एलीट को सर्व करता है वो बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और वो बहुत इफिशिएंसी से चलता है, और वो कभी खसारे में भी नहीं जाता। अगर जाता भी है कभी खसारे में तो कोई कंप्लेन नहीं करता कि इधर खसारा हो रहा है। HSN कॉलेज में क्या आपका ख्याल है खसारा नहीं हो रहा होगा? इतना बड़ा स्कूल है, इतने बड़े, उसके 400 तो माली काम करता है वहाँ पे। तो मगर कोई कंप्लेन नहीं करता कि यहाँ पे अगर हुकूमत को उसमें थोड़े से पैसे डालने पड़ते, नोबडी कंप्लेन्स अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज़ वो एलीट को सर्व करता है ना। अगर वहाँ पे मजदूरों के बच्चे पढ़े होते तो कहते हैं हम क्यों ये पैसे खर्च करें, या तो ये तो इनएफिशिएंट है, इसको बेच दो। तो ये बात है कि एक्चुअली हमारे इकोनॉमिस्ट जो है उन इदारों को बेचना चाहते हैं जो किसी ना किसी एतबार से पब्लिक को सर्व करते थे। और जो भी इदारे, चाहे वो फौज के हों, अस्करी क़यादत के हों, या वो एलीट को सर्व करते हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर एलीट को सर्व करता है उसको बेचने की वो बात नहीं करते। वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इफिशिएंटली चल रहा है, इसमें पैसे भी डाल रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कंट्री क्लब्स भी हो सकते हैं, उसमें गोल्फ क्लब्स भी हो सकते हैं, उसमें हर किस्म की चीज हो सकती है, मगर उस पे कोई, उसमें जिम खाना क्लब हो सकता है, उसमें पंजाब क्लब, सिंध क्लब हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वो उसी पे चलेंगे। थैंक यू। मेरा ख्याल है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने Thank you. मेरे ख्याल में बहुत सिंपल तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स इशू समझाने की कोशिश की। मैं बल्कि जब आपने टॉपिक दिया था तो मैं कलीम साहब से कह रहा था कि कलीम साहब ये समझ में किसको आएगा, या तो तैमूर को समझ में आएगा या कोई इकोनॉमिस्ट बिठाने पड़ेंगे जो इस बात को समझ सके। लेकिन मेरा ख्याल है इतने कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट जो थे आपने उसको इतने जो है वो हम जैसे जो जिनका दूर दूर से इकोनॉमी का वास्ता नहीं है सिवाय नोट देखने के, तो उनको भी समझ में आई बहुत सी चीजें। तो बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि आप यहाँ इन पर्सन होते तो अच्छी वो डिस्कशन रहती, लेकिन इसके बावजूद जी। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इर्तिका के लिए। और ये सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा, और जब भी आएंगे हम आपको घेरे रखेंगे। हम मैं शरीक होने वाले तमाम साथियों का भी शुक्रिया। और मैं इसके साथ मेरे ख्याल है हम इसको कंक्लूड करते हैं। कलीम साहब, आप कुछ कहना चाहें कंक्लूडिंग, ताकि हम इसको कंक्लूड कर दें? डॉक्टर तैमूर, कलीम, ये जो एक बच्ची जो फरजीन है उसके जहन में बहुत से सवाल आते हैं, उसने चैट बॉक्स में भी पहले लिखे थे श्रीलंका, अब दोबारा वो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरा एक और सवाल सुन लें। तो अगर आप कुछ टाइम दे सकते हैं तो हम उसका स्टूडेंट का सवाल ले लें एक। ठीक है जी, एक और सवाल ले लें। चलें, आखिरी अब आपका सवाल है। फरजीन, आप सवाल करना चाह रही थी? ओके, थैंक यू सो मच सर और एवरीवन। सर बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो श्रीलंका से ही रिलेटेड थी, कि जो आपने 4 फैक्टर्स बताए थे, अगर उससे रिलेट करके आप जरा सा थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दें श्रीलंका का जो अभी बैंकरप्ट हुआ है। तो श्रीलंका की कहानी कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं, बड़ी सादा सी कहानी है, और वो ये है कि श्रीलंका बड़ा अरसा जंग में फंसा रहा और बड़ी ब्रूटल उन्होंने टामिल्स के खिलाफ जंग की और बड़ी ब्रूटैलिटी से टामिल्स को क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम बड़ी देर जो है ना इस जंग में फंसे रहे हैं, तो हम बड़े बड़े कर्जे लें, और यूज उन्होंने कर्जे लेने शुरू कर दिए और बहुत बड़े लेवल पे श्रीलंका में खर्चे करने शुरू कर दिए कि हम डेवलपमेंट करें। IMF से भी कर्जे लिए उन्होंने, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे लिए, जापान से कर्जे लिए, हर जगह से कर्जे लिए, चाइना से भी कर्जे लिए, 10% कर्जे चाइना से लिए, 90% कर्जे उन्होंने और लोगों से लिए, तकरीबन 60% कर्जे उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह से लिए, बाकी कर्जे जापान वगैरह से लिए। ठीक है जी। अब हुआ ये कि
شروع میں تو وہ قرضے اپنے ادا کر رہے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کبھی شری لنکا گئے ہیں تو ان کے اتنے خوبصورت بیچز ہیں کہ جس کی حد ساق ہوئی. تو آسٹریلیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شری لنکا جاتے ہیں آسٹریلیا سے, ٹھیک ہے, اور ہر سال, اور وہ وہاں پہ ہالیڈے انجوائے کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہاں پہ سردی ہوتی ہے آسٹریلیا میں تو شری لنکا میں گرمی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایکویٹر کے اپوزٹ سائڈس میں ہیں. تو وہ سردی سے بھاگتے ہیں اور وہاں پہ گرمی میں آتے ہیں اور بیچز پہ لیٹے ہوتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو شری لنکا بہت سارے پیسے کما رہا تھا آسٹریلین ٹورسٹ سے بھی اور ویسٹرن ٹورسٹ سے بھی. بہت بڑا بائی دا وے وہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. میں خود وہاں پہ ٹورزم کر کے آیا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ بڑا انجوائبل سین ہے وہاں پہ, بڑا مزیدار قسم کا. انہوں نے بڑی خوبصورت ملک ہے, بڑی خوبصورت بیچز ہیں, سمندر بڑا صاف ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. تو بہت بڑے لیول پہ ٹورزم ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد آ گیا کووڈ. جب آ گیا کووڈ تو ان کی ساری ٹورزم ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو سفر نہیں کر سکتے, ایئر لائنس تباہ ہو گئی. آپ کو پتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ریگولیشنز لگائی گئیں کہ بھئی نہیں, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, ایئر لائن میں بندہ جو ہے وہ آدھے بندے بیٹھیں گے, پورے بندے نہیں بیٹھ سکتے, وغیرہ وغیرہ. ماسک پہنو, یہ کرو, وہ کرو, یہ ملک بند ہو گئے, سب کچھ. تو ٹورزم ٹوٹلی کلیپس ہو گیا. ورلڈ وائڈ کلیپس آف ٹورزم ہوا دنیا کے اندر, اور ایئر لائنس کا ورلڈ وائڈ کلیپس ہوا. انفیکٹ آپ نے شاید سنا ہو کہ فرانس نے, اسپین نے, بہت سارے, اٹلی نے اپنی ایئر لائنس خرید لی. گورنمنٹس نے نیشنلائز کر لی اپنی ایئر لائنس. دے باٹ دی ایئر لائنس, جو پہلے پرائیویٹ ہوتی تھی انہوں نے خرید لی تاکہ ان کی ایئر لائنس بینکرپٹ نہ ہو. تو ایئر لائنس کا اتنا برا حال ہوا, ٹورزم تباہ ہو گیا. تو شری لنکا جو پیسے بنا رہا تھا ٹورزم سے 3 سال لگاتار, وہ پیسے ہی نہیں بنا سکا. جب وہ پیسے نہیں بنا سکا تو اپنے قرضے نہیں ادا کر سکا. جب اپنے قرضے نہیں ادا کر سکا, انہوں نے پیسے چھاپنے شروع کر دیے, انہوں نے اور چیزیں کرنی شروع کر دی. تو رزلٹ پھر آپ کے سامنے آیا کہ بڑی تیز وہاں پہ انفلیشن بھی ہوئی, اور فائنلی ہوا یہ کہ ان کے پاس ڈالر ہی ختم ہے. انفلیشن تو خیر اپنا مسئلہ تھا, مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ڈالر ختم ہو گئے. جب ان کے پاس ڈالر ختم ہو گئے تو باہر سے چیزیں نہیں خرید سکتے تھے. تو پیپر بھی وہ باہر سے خریدتے تھے. بائی دا وے پاکستان بھی باہر سے پیپر خریدتا ہے, تو پیپر بھی وہ باہر سے خریدتے تھے. تو کاغذ بھی نہیں ان کے پاس بچا جس میں وہ یہ لکھ سکیں کہ ہمارے ڈیٹ کرائسس میں کیا ہو, کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں تھے. تو نہ کاغذ آ رہا تھا ملک کے اندر, نہ تیل آ رہا تھا, نہ پیٹرول آ رہا تھا, نہ گیس آ رہی تھی, وغیرہ وغیرہ. ساری اکانومی جو ہے کلیپس ہو گئی. اور پھر لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے اور راجہ پاکسا کے گھر میں پہنچ گئے, جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سوئمنگ پول ہے. انہوں نے وہاں پہ ڈبکی شکی گئی, بڑا انجوائے بھی کیا, شاور میں نہائے وغیرہ, انجوائے کیا. مگر انفارچونیٹلی ابھی شری لنکا کے اندر انہوں نے راجہ پاکساس کو تو بھگا دیا, مگر جو حکومت اقتدار میں آئی وہ وہی ہے جو راجہ پاکساس کے ساتھ حکومت پہلے بھی ہوا کرتی تھی. تو ابھی تک وہ اس اکنامک کرائسس سے نہیں نکلے. سو بیسکلی ٹو سم اٹ اپ, وار میں تھے, وار سے نکلے تو انہوں نے بہت بڑی ڈیٹ اٹھائی, ڈیٹس لینے شروع کی اپنی انڈسٹریلائزیشن کے لیے. ڈیٹ کو وہ ری پے کر رہے تھے مینلی ٹورزم کی وجہ سے. ٹورزم کووڈ میں کلیپس ہو گیا. جب ٹورزم کووڈ میں کلیپس ہو گیا تو ان کی فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو گئے. وہ بیسکلی ان کو بینکرپسی ڈکلیئر کرنی پڑی. وہ کچھ بھی, ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ بھی خرید سکیں بیرون ملک سے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور نہ وہ کچھ بھی نہیں, مطلب ان کی اکانومی میں بہت زیادہ پیداوار ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں امپورٹ کرنی ہی تھی. تو وہ چیزیں جو آتی تھیں ایک ملک کے اندر وہ آنا ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے اکانومی تباہ ہو گئی. تو پاکستان بھی تقریباً اسی سچویشن میں ہے اس وقت, وہاں سوائے اس کے کہ اب IMF نے ہمیں قرضہ دے دیا ہے اور اس کا پہلا ٹرانش وغیرہ آنے لگا ہے. تو جس کی وجہ سے اب ہمارے پاس تھوڑے سے ڈالر آ جائیں گے کہ ہم تیل وغیرہ خرید کے اپنی اکانومی کو 1-2 سال اور تقریباً چلا لیں گے. بٹ دس از ناٹ اے سولوشن ٹو a country like Pakistan, جو کہ is what 6th or 7th largest country in the world and with 240 million people, کہ ہم باہر سے قرضے لے کے جو اپنی معیشت چلائیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے نیبر پڑوس ملک ایران کے ساتھ آئل پائپ لائن کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور ایران کے پاس اتنا تیل پڑا ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. وہ بیچنے کے لیے تیار ہے, وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ ہم سے کوئی تیل خریدے. ہم ڈیسپریٹ ہیں کہ ہمیں کوئی تیل بیچے اور سستا بیچے. ہم ایران سے تیل نہیں خرید سکتے. اسی طرح ٹاپی گیس پائپ لائن ہے جو کہ ازبیکستان وغیرہ سے آنی ہے, تاجکستان وغیرہ سے افغانستان کے تھرو پاکستان ہوتے انڈیا وغیرہ کے اندر. ایران پائپ لائن بھی انڈیا کے اندر جانی ہے, وہ کیوں نہیں بنتی؟ سوچنے والی بات ہے. تو وہ بھی اسی طرح کمپلیٹلی اسٹالڈ ہے. اس کے پیچھے جیو پالیٹکس, انٹرنیشنل پالیٹکس اور ہماری اپنی غفلت اور بیوقوفی اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. تو دیٹ واز دا شری لنکن اسٹوری ان اے نٹ شیل, ویری بریفلی.
اور all of it basically جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو شری لنکا کے ساتھ ہو رہا ہے, جو تھرڈ ورلڈ کے ساتھ ہو رہا ہے, it is the result of the particular structural model of development and the particular place in which we have been placed in the global political economy, جس کے نتیجے میں ہم we are caught in a cycle of underdevelopment, جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم rules of the game کو نہ چینج کریں. تو اس لیے میں نے یہ لیکچر کیا to suggest to you how can the rules of the game be changed such that we can climb out of this cycle of underdevelopment. Thank you so much. میرے خیال میں مجھے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کا اور باقی دوسرے ساتھیوں کا جو اس وقت اس ویبینار میں موجود ہیں, ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے آفس میں موجود ہیں, کمیونیکیشن کے جو ہمارے ذرائع ہیں جدید, اس میں ہم چونکہ بوڑھے ہو گئے اس لیے کچھ چیزوں میں ہمیں پرابلم ہوئی آج کہ ہم اپنے ہال کو آپ کے ساتھ یا اپنے آڈینس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست انٹریکشن میں نہیں لا سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس میں مزید بہتری آ جائے گی تاکہ کوشچن آنسر کرنے والوں کے ساتھ ہال میں بھی جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو آپ اور آپ جیسے دوست ہیں ان کا انٹریکشن ہو سکے. ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر آپ آتے ہیں ہمارے پاس اور کراچی میں رہ کر بات کرتے, کیونکہ بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ کیا وہ نہیں آ رہے ہیں. کسی صاحبہ نے تو باقاعدہ چلا دیا کہ تیمور رحمان کراچی نہیں آ رہے. میں جوابات دیتے دیتے تھک گیا مگر جھوٹ بول نہیں سکتا تھا, تو اس کا بھی ایک اثر پڑا ہے کہ آپ یہاں تشریف نہیں لائے اور دوستوں نے معلوم نہیں ہمدردی میں یا محبت میں وہ سلسلہ شروع کر دیا کہ تیمور تو کراچی نہیں آ رہے. تو میں نے ان سے کہا آئیں یا نہ آئیں وہ موجود ہوں گے, اپنی بات کریں گے. ایک پہلو تو یہ تھا. دوسری بات ہے کہ کراچی میں جو سمندر تو پھر بھی ایک طرح سے بہتا ہے, سمندر تو پھر بھی ایک طرح سے بہتا ہے, لیکن کراچی کی سڑکیں اور گٹر ایک طرح سے نہیں بہتے. نکلنا چلنا آنا جانا انتہائی. پرسوں ہم آفس سے نکلے شام 5 بجے اور رات 8 بجے اپنے گھر پہنچے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ تقریباً 25-26 لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کیا آپ کے ساتھ, لیکن یہ شاید اور زیادہ ہو سکتے تھے اور ہونے چاہیے تھے. نہیں جی, آپ کو بالکل بھی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. معذرت تو میری طرف سے, اصل میں مجھے ایک ایمرجنسی پڑ گئی تھی. میں نے جیسے شاید آپ کو بتایا تھا, مگر دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ مجھے برازیل جانا تھا ایک کانفرنس کے لیے. تو برازیلین ایمبیسی نے مجھے فون کیا کہ بھائی ابھی فوراً آپ پہنچے, 19 کو آپ کا انٹرویو ہے اسلام آباد میں, جس کی وجہ سے مجھے یہ کینسل کرنا پڑا. اپولوجائز. مگر سپٹمبر میں کراچی آ رہا ہوں اور ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے اندر سپٹمبر کے اندر میں لازمی لیکچر کروں گا. اس میں آپ نے جو بات کی ماڈرن تھیوری پر اکانومی کی, یہ بات تو ہوتی ہے لیکن اس طرح سے جو بات ہے ہوتی ہے لیکن کم جگہوں پر ہوتی ہے. اور ہمارے کچھ دوستوں کے لیے یہ جو ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجی ہے یہ کچھ نسبتاً نئی ہوگی, لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے کیونکہ ہم گفتگو تو سنتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا, یہ صورتحال ہے, سرمایہ دار نے یہ کر دیا, لیکن وہ اس جگہ تک پہنچتا کیسے ہے, اکانومی کو لے کر کیسے آتا ہے, لوگوں کو کس طرح, لوگوں کی جو محنت ہے اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس پر جو بات جس طرح سے آپ نے کی میرے خیال میں وہ ہم سب اس میں شامل لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس موضوع پر اس حوالے سے جو ابھی آپ نے ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی, ہم اس کو لے کر کے ساتھ چلیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے وقت دیا. مشکل ہو گیا تھا آپ کے لیے اسلام آباد سے اس کو کرنا, لیکن یہ کہ ہمارا اور آپ کا ارتقاء انسٹیٹیوٹ کا ایک تعلق ہمیشہ سے تھا, ایک طویل ربط ہے ہمارا آپ کا, ذاتی طور پر بھی بہت ایک طویل ربط ہے, اور یہ تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا. جب بھی آپ کراچی آئیں تھوڑا سا پہلے بتا دیں, تو یا ناٹ نیسیسریلی کہ آپ کراچی آئیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہو فوری طور پر, اس کی اہمیت اس طرح کی ہے, تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم ارتقاء کے دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کرنا چاہیں گے اور سننا چاہیں گے. تیمور بے انتہا شکریہ آپ کا,
بے انتہا شکریہ. تھینک یو جی، بہت آئندہ شکریہ. ملاقات کی امید کے ساتھ بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.